But practice isn't just about seeing clients now. For psychologists, it means a small business, a micro business, MSME, or a nano business, where you can sustain yourself and build a brand of yourself. Today, we are going to talk about that. I am joined by Akriti today. She is a RCI licensed psychologist, art therapist, career counselor, author, and she has done a lot in past 5 years of her career. So it's been more than 5 years for her in this field. And today we are going to talk about how you can build your prior practice and why it's important. What a psychologist can do to build her prior practice and build a brand in this particular field. So, if you're a psychology student, early career therapist, this video is for you. I hope this podcast will be loved by you. So, let's get started. Yeah, Kriti, what's up? Just excited about the podcast right now. Cool. So let's start. I'll just give you a vague overview कि audience कैसी है. Audience जो हमारा target है कि to aware therapist about especially early career and mid career therapist कि exactly prior practice की क्या importance है, कैसे उसे grow करना है, because it's been years that you are into this industry. So हम्म आपने कैसे इवॉल्व किया, कैसे लॉन्च किया खुद को, कैसे प्रायर प्रैक्टिस लॉन्च किया, ब्रांड बनाने के लिए क्या चाहिए होता है, इंडिविजुअल ब्रांड और प्रायर प्रैक्टिस ब्रांड में क्या डिफरेंस होता है. सो इन सब में बात करेंगे. एक्साइटेड अबाउट इट. एट पीस एट ईज लिखा हुआ है मीटिंग में. नेम भी. सो ये नेम कैसे आया और कब आया एग्जैक्टली और फ्लो कैसा रहा उसका. So yeah, supervisor जो मेरे थे उस टाइम पे the person I was working with, working under, he told me to have a social media presence somehow कि कुछ रखो social media पे so that people know you and Instagram उस टाइम पे इतना नया भी नहीं था पर इतना पुराना भी नहीं था cause उस टाइम पे रील्स का इतना कोई क्रेज नहीं था just हमने स्टार्ट किया. It was just post and post तो कुछ ऐसा खास था नहीं but he told us to have something out there कि लोगों को पता चले you are there in the field right now, you're working there. So he gave us an idea कि start करो कुछ भी name लेके think about a name and start. So we went through several names, बहुत सारे नाम shortlist किए, brainstorming करी, about 3 or 4 months लगे, अच्छी खासी brainstorming करी and बहुत एक्चुअली बहुत दिमाग लगा उसमें, बहुत सारे फ्रेंड्स को इन्वॉल्व करके रखा था, फैमिली को इन्वॉल्व करके रखा था कि बताओ क्या सही लगता है क्या नहीं. द लास्ट टू दैट आई सर्कल्ड अपॉन वर एक था हैप्पी हीलिंग और एक था एट पीस आर्टिस्ट. तो जो हैप्पी हाँ. हीलिंग था उस पे मेनी पीपल weren't happy. Now I still like that name, वो भी मेरे साथ है इसलिए I love that name somehow. बट एट पीस आर्टिस्ट से तो मैक्सिमम रिस्पॉन्स आया था. उस टाइम पे पोल्स भी नहीं थे कि आप पोल करा देते बट या एट पीस आर्टिस्ट का रिस्पॉन्स मैक्सिमम था. People liked it and me personally having anxiety disorder तो मुझे वो बहुत पीसफुल और कामिंग लगा कहीं ना कहीं नेम की. हम्म. कुछ कुछ देता है that gives you something like people से ना calm down काम नहीं करता आप पे. When you say someone जिसको anxiety हो रही calm down, that doesn't work on you. पर राइट. आपको उसके मेरे को लगता है उसकी जगह you can use at peace at ease, like be at peace. Try to be at ease is the words that we use with them basically. That is what the idea was behind this name. पसंद आ गया उस कूल. टाइम पे and I just started with it. कूल. ये काफी गुड स्ट्रैटेजी भी है. अगर हम ब्रांडिंग के हिसाब से देखें ना इसको, कि जैसे कि बी काम या फिर काम डाउन उसमें इरिटेट हो जाता है बंदा. भाई मुझे पता So है काम रहना है, मैं नहीं रह पा रहा तभी मैं ऐसा हूँ, और तुम मुझे बता रहे हो बी exactly. काम. तो वहां पे इफ यू रिप्लेस सम वर्ड, सो इट्स अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन एज वेल कि आप ने True. बस रिप्लेस कर दिया वर्ड एंड देन यू आर इजीली कम्युनिकेटिंग, यू आर अ गुड कम्युनिकेटर. सो वो एक Kind of. ब्रांडिंग, ये एक ब्रांडिंग भी एक काफी उसमें एसेंशियल पार्ट आ गई फिर, क्योंकि आपने उधर बिल्कुल रिसेम्बलेंस कर बहुत है दिया. बहुत. As you see name राइट. nowadays सबके वो मन से स्टार्ट हो रहे हैं, not to offend anyone but सबके नाम वो मनो मनो हो रहे हैं हिंदी के नाम पे, सब उसी पे या. जा रहे हैं. तो आई एम हैप्पी कि राइट. उस टाइम पे ये थे भी नहीं तो मुझे वो आइडिया स्ट्राइक भी नहीं किया कहीं भी. बट अभी जिस तरीके से वो फ्लड हो रहे हैं तो मुझे लग रहा है आई एम वेरी हैप्पी विद माय नेम. हालांकि
हिंदी होता तो शायद मैं ज्यादा खुश होती कहीं ना कहीं, but I have a very different and unique name in that field, and that is what makes me happy about it. ये लाइक बेसिकली चल भी ऐसा रहा है मार्केट में, ऐसा शायद इसकी वेव आएगी अभी 1-2 साल में कि लोकल लैंग्वेजेस में थेरेपी प्रोवाइड करना, दैट्स वाई संस्कृत या फिर रीजनल लैंग्वेज, हिंदी, इन सब में बिल्कुल। नेम्स आ रहे हैं। एंड वो हम्म। नेम्स आ रहे हैं, सो इस टू वे अराउंड। पहला कि आपने सोच रखा है कि मुझे रीजनल लैंग्वेज में जाना है, शायद तभी आपने ऐसा नेम चूज किया, या फिर आपने ऐसा नेम चूज किया इसलिए लोग सोच रहे हैं तो आपको करना पड़ेगा, ट्रू। राइट? ट्रू। ऐसा आ सकता है। एट पीस आईडीज के साथ यू हैव अ फ्रीडम कि हाँ यार, मैं हिंदी इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में प्रोवाइड करूँ, सो इतना कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि वो नेम एक ऐसा सेफ हो गया। एंड द बिग थिंग इज, हाँ। जैसे कि हम पहले ही बात कर रहे थे कि एट पीस आईटीज इज अ बिग नेम, राइट? तो काफी लोगों को टाइप करने में, सोचने में दिक्कत होती है, बट आई आई जस्ट बी वेरी ऑनेस्ट हियर। मैं कल ही टीवीएफ की कुछ वीडियोस देख रहा था पुरानी, राइट? सो आप टीवीएफ सर्च कर रहे हो, आपको टीवीएफ याद है, राइट? बट फुल नेम क्या है उसका? द वायरल फीवर। वायरल उसकी फीवर, वेबसाइट, यस। या उसकी वेबसाइट क्या है? द वायरल फीवर .com, राइट? बट आपने नाम कैसे याद रख रखा है? टीवीएफ से। सो आपने खुद ही शॉर्ट बना लिया, राइट। उन्होंने भी ब्रांडिंग में हिसाब से किया, लोगों में अपना हिसाब से किया। तो दैट इज द थिंग, आप पूरा टाइप नहीं करते उसको। सो हाँ। राइट। इट्स नॉट अबाउट रिकॉल मैं वाली अपना इतनी वो भी चीज, ट्राई किया था, वो आप क्या लिख रहे APA मैंने भी ट्राई किया था, बट अगेन वो बोलने में दिक्कत दे रहा है कहीं ना कहीं। आई ट्राइड हो। दैट टू विद इट। राइट, लाइक, बट ऑफ कोर्स नेम इज वेरी गुड, अगर उस हिसाब से भी देखो, टारगेटेड काफी है। सो अगर हम इसे ही फॉलो अप करके लेके जाए, सो आपने अपना इनिशियल डेज पे, लाइक व्हाट वाज द ईयर, इफ यू वांट टू टॉक, कि कौन सा ईयर था जब आपने ये नेम डिसाइड किया, और आपने कब ऑफिशियली लॉन्च किया, एंड क्या क्या दिक्कतें आई? लाइक डोमेन नेम हो जाती है चीजें, बिजनेस सेटअप हो जाता है, ऑनलाइन स्पेस में आप देखो, आपको पॉलिसीज का भी ध्यान रखनी पड़ती है कि रिफंड पॉलिसी, प्राइवेसी पॉलिसी, ये कहाँ पे लिख रहे हो आप? तो वो सब कैसा रहा? So starting, I guess 2019 में was the time when we started thinking about it. अगस्त सितंबर में हमने इसके ऊपर थॉट देना स्टार्ट किया था कि नाम कुछ रखना है तो क्या रखना है। 2019, yes, that is when we started। जब मैं ट्रेनिंग के अंदर ही थी। January 1st 2020 was the time, was the date exactly जब हमने लॉन्च किया था। Cause हम्म, हमें नहीं पता था कोविड आने वाला है, बट दैट इज द डेट में आई डिसाइडेड कि न्यू ईयर सब मनाएंगे और शायद मैं भी अपना एक बर्थडे मना लूंगी, लाइक अ सेकेंड बर्थडे काइंड ऑफ थिंग। वो प्लान था उसके साथ। तभी उसको 1 जनवरी 2020 को लॉन्च किया। द पॉलिसी पार्ट इनिशियली, ऑनेस्टली हम लोग, मैं इतनी वेल वर्स थी भी नहीं इनिशियली इसके बारे में, बट वो बहुत अभी लगता हम्म, है 3 साल पहले मैंने वो पॉलिसी वाला पार्ट रिवाइव किया है, वो सब कुछ समझा है हाउ इट गोस थ्रू। इनिशियली 2 ईयर तो मुझे लगता है मुझे अपना एरिया समझने में ही लग गया, अपना नीश, अपना एरिया, हम्म, अपना एक्सपर्टीज। उसी में पूरे 2 साल मेरे साथ चले गए वहां पे। उस बीच में मैं कहीं एनजीओ के साथ जुड़ी हुई थी, कहीं वॉलंटियर कर रही थी, वहां थेरेपी पार्ट देख रही थी, कहीं पर ऐसा भी हुआ कि मेरे और एक पढ़ाई चल रही थी, एक और कोर्स कर रही थी, उसके लिए फिर एक हॉस्पिटल में भी इंटर्नशिप कर रही थी। तो वो अपने आप को ब्रश अप भी कर रही थी, अपने आप को एडवांस भी कर रही थी स्किल्स के थ्रू, एंड मैं अपना अराउंड भी समझ रही थी कैसा मेरा एनवायरनमेंट है, साइकोलॉजी के एनवायरनमेंट में क्या चल रहा है, क्या चलाना है, कैसे क्या होता है। तो वो समझने में ही 2 साल लग गए। पॉलिसी तो शायद मैं 2023 2022 के एंड में जाकर समझी है कि हाउ इट वर्क्स एंड हाउ इट डजंट। कहाँ रखना नहीं रखना, वो इनिशियली वही था कि वो एक लिस्ट बना के रख दी थी व्हाट्सएप पे। जब भी कोई पूछेगा यू सेंड देम अ मैसेज, उसके ऊपर कॉपी पेस्ट किया मैसेज, उनको भेज दिया कि भाई ये प्राइसिंग होती है, ये टाइम होता है, ये रिफंड पॉलिसी और ये सब कुछ। अबाउट 9 to 10 पॉइंटर्स थे, वो भेज दिए इनिशियली। हम्म, एंड अभी वो हुआ है कि वो गूगल फॉर्म में चला गया है, और वो अपना जो डोमेन नेम उस टाइम पे लिया था, उसका जो वेबसाइट बना है अब गया है उसके अंदर। इनिशियली वो बहुत लाइक वर्ड ऑफ माउथ टाइप था कि हाँ मुंह जबानी बोल दिया या फिर व्हाट्सएप कर दिया। अब वो मेल्स पे भी जाता है, वो गूगल फॉर्म में भी जाता है, अब वो सब जगह जाता है पिछले 2-3 साल से। अंडरस्टूड। सब नियरली ऑर्गेनाइज्ड और थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन हो चुका है, अगर आप देखोगे हाँ, अब हो गया है। पहले से। अंडरस्टूड। सो लाइक जब आपने प्रायर प्रैक्टिस शुरू की, 5 साल हो गए नियरली, इट्स हाफ अ डिकेड, सो इट्स क्वाइट गुड टाइम। सो
जब स्टार्ट किया था, जैसे सुपरवाइजर्स भी थे, आप बता रहे थे, फ्रेंड्स भी थे, काफी एडवाइस ली, काफी बात की लोगों से। तो तब लोगों ने ऐसा क्या बताया जो कि प्राइवेट प्रैक्टिस करने में पता चला कि यार ये ऐसा नहीं होता, फॉल्स है, या फिर कुछ नरेटिव चेंज हुआ, या फिर ऐसी चीज जो लोगों ने बताई नहीं और जाके पता चली प्राइवेट प्रैक्टिस में कि ऐसा भी होता है। दैट इज द मेन थिंग। जो मेरे फ्रेंड्स थे वो स्किल का कोई भी नहीं था उस टाइम। हाँ, मेरे पास कलीग्स थे 2-3 एंड हाँ। मेरे पास इंटर्न्स की थी 2-3, बट सुपरवाइजर भी थे ऑफ कोर्स, वो तो सेम फील्ड ही थे, बट मेरे पास जो फ्रेंड्स थे वो इस फील्ड में कोई नहीं था। तो व्हेन आई गॉट इनटू दिस फील्ड, दैट इज व्हेन आई रियलाइज्ड कि बहुत लोनली हो जाता है एक टाइम पर। जिसमें सबसे हम्म। ज्यादा लोनलीनेस आपको लगती है व्हेन यू हैव व्हेन यू हैव अचीव्ड समथिंग एंड कॉन्फिडेंशियलिटी कॉन्टैक्ट होता है, बात भी नहीं कर सकते उसके बारे में। अगर फ्रेंड भी हो राइट। तो यू कैन टॉक अबाउट इट। तो उसको यप। आप केस स्टडी के रूप में निकाल सकते हो, ऑफ कोर्स यू कैन टेक इट आउट एज अ केस स्टडी अपने सुपरवाइजर को ही, बट यू कांट सेलिब्रेट दैट ना। कोई क्लाइंट आपकी वजह से खुश हो गया, ठीक हो गया, यू कांट सेलिब्रेट दैट। किसके साथ करोगे? लोनली होते हो फील्ड में। दैट इज व्हेन आई फाउंड आउट कि हमें नेटवर्किंग कितना इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिकली साइकोलॉजी के फील्ड में। वहाँ किसी हम्म। ने नहीं बताया था हमको कि नेटवर्किंग करनी चाहिए, शुड बी पार्ट ऑफ सम ग्रुप और समथिंग लाइक दैट। राइट। दिस इज समथिंग आई फाउंड आउट इन 2022 और 23 आई गेस, जब मुझे रियलाइज हुआ कि नेटवर्किंग करनी चाहिए एंड आई शुड गो आउट एंड मीट मोर पीपल। तब तक कोविड का हम्म। सेकंड वेव भी ऑलमोस्ट खत्म होने को आ ही गया था, तो हमने कहा कि ठीक है। आई फाउंड आउट एड अबाउट सम मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर्स का मिक्सर एंड आई जस्ट रैंडमली एनरोल्ड माई सेल्फ, बिकॉज सोशल एंजाइटी आ चुकी थी उस टाइम। कोविड की वजह से हम इतना अंदर बैठ चुके थे कि वो सोशल एंजाइटी क्रीप अप हो चुकी थी। बट आई वाज लाइक नहीं, ये तो मुझे ट्राई करना है, लेट अस गिव इट अ ट्राई एंड आई जस्ट वेंट आउट देयर कि देखते हैं क्या होता है, लेट अस जस्ट गो आउट एंड वहां जाके रियलाइज कि सब आपके जितने ही लोनली दिख रहे हैं आपको। सबको थेरेपी लेने की बात करोगे सब ऐसे रेडी होते हैं, बट वी टॉक अबाउट मेकिंग फ्रेंड्स तो वो सब बहुत शांत, बहुत टिमिड है। कुछ कुछ है बहुत ओपन, बट मोस्ट ऑफ अस 70% आर लाइक दैट। तो वहां पे मैंने टॉक टू पीपल, आई अंडरस्टूड कि नहीं, ये सिर्फ मैं नहीं हूँ, सबकी जनरल प्रॉब्लम है, एवरीवन फील्स लोनली है। हम्म। थैंक्स टू द पीपल उन्होंने जो अरेंज कराया था। उसके बाद आई बीन अ रेगुलर टू दीज इवेंट्स। उसके अंदर वन मोर थिंग, नीश। नीश के बारे में कोई नहीं बताता आपको, आपकी नीश पता होनी चाहिए। हालांकि पता होना एंड एक्सप्लोर करना टू डिफरेंट थिंग्स। मुझे लगेगा मैं एंजाइटी में टॉप एकदम काम करती हूँ बिकॉज आई हैव इट, बट अंदर जाके पता चलेगा कि आप ये भी कर सकते हो एंड यू आर समथिंग वेरी गुड एट दिस पार्ट ऑल्सो। सिर्फ एंजाइटी नहीं, कुछ और भी देख सकते हो आप। बाहर से किसी ने बताया नहीं था हम्म। कि नीश की इम्पोर्टेंस होती है, नीश पता होना चाहिए। या प्राइवेट प्रैक्टिस में समटाइम्स वी आर नॉट गेटिंग द अमाउंट ऑफ क्लाइंट्स एंड गेटिंग द अमाउंट ऑफ मनी दैट यू वांट। वो भी हम्म। एक बहुत बड़ी चीज है जो अब बहुत लोगों को अवेयरनेस है, बिकॉज हम इंस्टाग्राम पे इतना आउटस्पोकन हो गए हैं। इनिशियली कोई नहीं बता रहा था आपको कि यहाँ पैसे नहीं आते हैं। आप सबकी लाइफ देखो इंस्टाग्राम, वैसे भी सबकी लाइफ ऐसी होती है, हैप्पी गो लकी टाइप की, सब एकदम खुशी चल रहे हैं, कोई उदासी है ही नहीं किसी की जिंदगी में, सब इतने ऑप्टिमिस्टिक है। बट नहीं, इस राइट। फील्ड में पैसा इज समथिंग दैट यू ऑन, यू स्टार्ट अर्निंग अ रेगुलर अमाउंट आफ्टर बहुत अच्छा एक टाइम लग जाता है आपको स्टैब्लिश करने में। कुछ लोग बोलते हैं दे अर्न 70 लाख, वो बहुत, मुझे लगता है वो बहुत रबिश चीज कर रही है, बिकॉज इनिशियली यू कांट डू दैट। एकदम से आप इतना हम्म। बड़ा अमाउंट नहीं अचीव कर सकते, बिकॉज इंडिया में वैसे भी अभी तक अपना स्टिग्मा इतना है, इतना टैबू है थेरेपी को लेकर, तो वो चीज नहीं हो पाती है अभी भी। मैं आपको इसी बताता हूँ, अभी रिसेंटली लाइक आई एम दिस इंडस्ट्री पिछले 3-4 साल से, नियरली 4 साल हो गए होंगे, रिसर्च एंड बिल्डिंग प्रोडक्ट्स सिर्फ इस स्पेस में, वेलबीइंग एंड हेल्थ वाले स्पेस में। सो एक इनसाइट काफी रही है कि जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि काफी टाइम लग जाता है। क्यों? क्योंकि ये थोड़ी स्टेडी प्रोसेस है, एंड देयर इज अ चॉइस दैट साइकोलॉजिस्ट यूज टू मेक कि भाई, हाँ, मार्केट में ट्रेंडिंग है कंप्यूटर साइंस, आपका इंटरेस्ट नहीं है। काफी लोग बिना इंटरेस्ट के भी जाते हैं क्योंकि उन्हें पैकेज दिख जाते हैं, 1 करोड़, 2 करोड़, 4 साल में ही बन जाएगा ट्रू। पैसा। काफी लोग सिर्फ कैट की तैयारी क्यों कर रहे हैं? काफी बड़े बड़े आईआईएम, इवन मैनेजमेंट, आई विल नॉट से द कॉलेज नेम्स, बट इवन काफी एमबीए कॉलेजेस क्यों चल रहे हैं? वो सिर्फ प्लेसमेंट के लिए चल रहे हैं। अभी कुणाल शाह जो क्रेडिट के फाउंडर हैं, उन्होंने भी यही बोला कि काफी एमबीए स्कूल्स सिर्फ प्लेसमेंट के लिए चल रहे हैं, आप आउटकम हटा दोगे, पढ़ाई के लिए कोई नहीं जाएगा। तो बट साइकोलॉजिस्ट वो चीज स्किप करते हैं, कहते हैं हमें ये चीज नहीं चाहिए, हमें अपना पैशन और एक सोसाइटी गुडविल फॉलो करना है। ठीक है,
and that requires time, and that requires effort, dedication कि हाँ आपको 6 साल देने पड़ेंगे, देन उसके बाद भी शायद आपको 2 साल स्टेबल होने में लग जाए. Then what I realized personally is you can't be very stable in a company as a freelancer, as a psychologist. That's what I personally realized. Is you have to make your side personal clients. True. Cause like आपको प्राइवेट प्रैक्टिस अपनी कहीं ना कहीं स्टेबल या फिर इस्टेब्लिश करनी ही पड़ेगी. आई विल टेल यू द रीजन. मैं इस इंडस्ट्री में 4 साल से हूँ. मैंने लिटरली 15 से ऊपर कंपनी देखी है खुलते हुए और बंद होते. काफी बड़े अमाउंट पे, काफी बड़े लेवल पे वो खुली और बंद हो गई. एंड इन 4 साल के अंदर, ठीक है, आई उन्होंने फंडिंग्स भी उठाई काफी अच्छा अच्छा कि हम ये कर देंगे, हम इतनी फंडिंग उठा रहे हैं, अब एप्लीकेशन आएगी, आप ये कर दोगे, वो कर दोगे. एट द वो बंद हो गई, राइट. सो दिस इज अ थिंग लाइक जहाँ पे आपको एक्सटर्नल कैपिटल नहीं आ रहा है किसी फंड मैनेजर से या फिर FIIs से या फिर कहीं और इन्वेस्टर से, इतना हेवी अमाउंट नहीं आ रहा है. तो कुछ प्लेयर्स ही होंगे जहाँ पे आप जाके थोड़ा सा फुल टाइम एम्प्लॉय करके या फिर पार्ट टाइम एम्प्लॉय करके यू कैन मेक गुड अमाउंट, राइट. हम्म. तो आपके पास एक चॉइस हमेशा रहनी चाहिए जो कि प्राइवेट प्रैक्टिस लॉन्च करके, सो दैट यू कैन मेक सम गिग वर्क्स. सेकंड, जैसे आपने नेटवर्क की इंपॉर्टेंस बताई, नेटवर्क की इंपॉर्टेंस काफी है साइकोलॉजी इंडस्ट्री में. एंड अनदर थिंग, जैसे आपने स्टार्टिंग में सोशल मीडिया की बात की, आपने फिर अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस लॉन्च की 5 साल पहले ही, जब इतना ज्यादा मार्केट में सोशल मीडिया नहीं था, राइट. तो यही वाली चीज है कि आप सिर्फ नेटवर्क पे डिपेंड नहीं कर सकते, आपको खुद की प्रेजेंस बनानी पड़ेगी, बिल्कुल. राइट. बिल्कुल. आई फील आई फील वेरी हैप्पी व्हेन साइकोलॉजिस्ट चूज कि हम ट्रेंडिंग की तरफ नहीं जाएंगे, हम लोग उधर जाएंगे, एक इधर वाली स्पेस पे जाके मेंटल हेल्थ के लिए कुछ काम करेंगे. एंड दैट इज नॉट लाइक यू हैव टू बी काइंड ऑफ NGO ओनर और समथिंग. आप एक डिग्री ले रहे हो, यू हैव स्पेशलाइजेशन, then you are valid to take therapies, and that is the required thing अभी इंडिया में. And it is also booming अभी basically इसमें एक पिछले और एक. चीज एक और चीज इसमें होती है क्या, व्हेन यू वर टॉकिंग अबाउट हम कैसे हम लोग हेल्प कर रहे हैं, हेल्प भी नहीं बोल सकते, सपोर्ट कर रहे हैं मेंटल हेल्थ का. पर उसमें द थिंग इज हम लोग जब उसमें फाइनेंस की बात करते हैं तो पीपल टेंड टू शेम अस कि या फिर हम लोग को वो शेम कहीं ना कहीं इनबिल्ट भी आता है कि व्हाई आर यू थिंकिंग अबाउट मनी, यू आर डूइंग सच अ नोबल थिंग, पैसे की मत सोचो. एंड दैट आल्सो हैपेंस व्हेन यू आर स्टार्टिंग आउट. बट वहां पे कोई बताने वाला नहीं होता इनिशियली कि वो फाइनेंस को भी उतना ही ध्यान दो. कोई बोलने वाला भी नहीं होता कि बेसिकली फाइनेंस पे ध्यान देना चाहिए. वो जो गुड थिंग है, जो अपने अंदर अच्छाई है, एम्पैथी है, उसको यूज करके डोंट थिंक अबाउट मनी, पेशेंट का सोचो, उनके अच्छे होने का सोचो. वो भी एक चीज इनबिल्ट बेसिकली आती है कहीं ना कहीं. it's all about you invested your money in degree, right. तो तो आपको रिकवर करना है, ये कांट बी जस्ट डू, आपको बेसिक लिविंग भी निकालनी है, राइट. सो इट्स नॉट लाइक कि आउट ऑफ नोबल थिंग आप अमाउंट को इतना साइडलाइन कर दो. यू हैव टू टेक मनी बिकॉज इट्स सर्वाइवल थिंग. सो मनी इज द ट्रू. करेंसी, मनी इज द करेंसी जो आपको इस मेनी दुनिया में चलने साइकोलॉजिस्ट के आर लिए रहने के स्टिल लिए मिली है. ट्रू. बिल्कुल. मेनी साइकोलॉजिस्ट आर स्टिल वेरी अशेम्ड ऑफ आस्किंग मनी. बहुत सालों से मेरी अभी भी जब अर्ली करियर थेरेपिस्ट से बात होती है, दर लाइक मैम पैसे मांगने में बहुत अजीब लगता है, कैसे बोले कि पैसे इतने हैं and कैसे चार्ज करें. वो बहुत बार बच्चों के इशू आते हैं कि हम लोगों ने कभी मांगा नहीं है एंड हमें हमेशा सैलरी हाथ में मिलती आई है, हमें हमेशा हाथ में पैसे मिलते आए हैं. मांगना इज मतलब तुम मांग नहीं रहे, दैट इज समथिंग दैट Yeah. यू आर ओनिंग ऑफ. लाइक आपको आपका ही है वो Hmm. पैसा, तुम्हारी मेहनत है, तुम्हारी डिग्री है, तुम्हारी पढ़ाई है, सब कुछ तुम्हारा है जो तुम वापस दे रहे हो कहीं ना कहीं. तुम मांग नहीं रहे हो. दैट इज Right. व्हाट यू आर आस्किंग फॉर. एंड अपने आप को उतना हम लोग नीचे कर देते हैं कि नहीं नहीं हम लोग ग्लोबल कॉज के लिए काम कर रहे हैं कि वी आर अशेम्ड ऑफ आस्किंग मनी. इनिशियली बहुत बार होता है. मैं एनजीओ में थी तो Yeah. एनजीओ में इट वाज अ फ्री वर्क ऑफ कोर्स. एनजीओ में तो हम लोग वॉलंटियर कर रहे थे, मैं प्रॉपर वॉलंटियर भी थी एंड आई टुक अराउंड एक मंथ में आई टुक अराउंड 70 केसेस. लाइक पूरे एक महीने में 70 केसेस मैंने देखे हैं. And not asking a single money for them was something I later on realized कुछ तो लेना ही चाहिए था. बट ठीक है, वॉलंटियर वर्क था, समझ रहे थे क्या हो रहा है क्या नहीं. दैट इज ओके देयर. बट या हम लोग को बात मुझे भी अभी लाइक लास्ट ईयर और लास्ट लास्ट ईयर आई मेट अ पर्सन
who asked me about my degree, and she was like, seriously, आप इतना कम क्यों चार्ज कर रहे हो? What are you doing to yourself? अपने आप का आप इंसल्ट कर रहे हो इतना कम चार्ज करके, इंक्रीज योर फीस। एंड जैसे फीस इंक्रीज होती है, आधे आपके क्लाइंट वैसे ले जाते हैं कि नहीं, हम लोग इतना पे नहीं कर सकते, वी कांट अफोर्ड दिस मच। तो फिर आपको एक शेम आता है कि राइट। यार किसी की हेल्प करनी थी, एंड यू नो देयर स्टोरी टू, किसकी हेल्प करनी चाहिए थी, एंड शिट मैं ज्यादा पैसे मांग रही हूँ, किसी को दिक्कत हो रही है। एंड वो हम लोगों के अंदर कहीं ना कहीं इनबिल्ट है, वो हमें निकालना भी पड़ेगा, वो भी हमें कोई सिखाता नहीं, वो अपने आप ही आता है कहीं ना कहीं से, वो सीख नहीं सकते। सेकंड थर्ड ईयर में जाकर ही सीखोगे, मैं अभी बोल दूंगी तो भी नहीं सीख पाओगे शायद तक, वो अपने आप आएगा तब you'll be able to understand क्या प्रोसेस होता है उसका। प्राइवेट प्रैक्टिस आपको एक स्मॉल बिजनेस है, ठीक है। So you have to take it like that. You have to take care of pricing strategy. You have to take care about your बिल्कुल। uh, like marketing. You have to take care about your communication. You have to take care about brand. So आपको कुछ केस स्टडी खुद ही आप पढ़ो। फॉर एग्जाम्पल ब्लिंकिट इतनी जल्दी कैसे ग्रो हो गया? अभी स्विगी और जोमेटो का हम्म। क्वार्टरली रिजल्ट आया, जोमेटो प्रॉफिट में है, 1000 करोड़ के लॉस में कैसे है स्विगी? क्योंकि दोनों का टारगेट ऑडियंस मार्केट सब सेम है। सो दोनों में क्या डिफरेंस है, ये घाटा क्यों कर रहे हैं? सो वो एसेंस आपको बिजनेस में रह के समझ आती है। एंड जैसे अपना ट्रू। प्राइसिंग का, जस्ट जस्ट एक प्राइसिंग का अगर मैं बोलूं, सो ऐसा हो सकता है लाइक आप प्राइसिंग थोड़ा मोल्ड करो क्लाइंट के हिसाब से। आई विल वेरी ऑनेस्ट कि काफी थेरेपिस्ट के जो प्राइस स्ट्रक्चर होते हैं वो कहीं ना कहीं 1800 1000 रुपए से लेकर 2.5 के तक रहते हैं। सो इतना पर ट्रू। सेशन के हिसाब से। नाउ जो बेस्ट आउटकम होता है वो ये होता है कि वंस इन अ वीक आप थेरेपी लो, राइट, ताकि आप रेगुलर चेक इन पे रहो। सो इफ यू इमेजिन इन दैट सेंस, लाइक अगर आप 1000 रुपए एवरेज लेके चल रहे हो, चलो आप 1000 रुपए एंड देन 4 सेशन तो 4000 आपके पूरे महीने के हो गए। इट इज नॉट अ वेरी बिग अमाउंट, बट इफ यू लुक एट द इंडियन ऑडियंस, राइट, इंडियन ऑडियंस, मेजोरिटी इंडियन ऑडियंस 20,000 से 30,000 के बीच कमा रही है पर महीने, राइट। सो उनके लिए 4000 इज लिटरली अ बिग चंक। इट्स अ बिग चंक, क्योंकि आप 20,000 का अगर आप 4000 परसेंटेज निकालोगे, इट्स अ वेरी बिग पीस, राइट। ट्रू। ट्रू। तो कहीं ना कहीं ऑन एन एवरेज अगर 20-30 हजार का एवरेज हम सैलरी लेके चले इंसान की, सो इट्स लाइक यू आर टेकिंग 20 to 30% ऑफ दी उनकी सैलरी, राइट। अब अगर आप इस हिसाब से सोचोगे, व्हाट एग्जैक्टली यू कैन डू, आप इसे स्मॉलर चंक्स में डिवाइड कर सकते हो, आप 25 मिनट्स के हिसाब से डिवाइड कर सकते हो इफ इट वर्क्स फॉर यू। अदरवाइज व्हाट यू कैन डू, यू कैन सेल पैकेजेस, ठीक है, वो आपको भी वी कॉस्टिंग डू में सही सेल रहे, पैकेजेस। राइट। आपने 3 महीने का पैकेज भेज दिया, एंड देन यू नो कि उसकी वन टाइम इन्वेस्टमेंट है एंड वो कहीं नहीं जा रहा है, एंड आपके पास भी एक अच्छा अमाउंट आ गया, सो दैट यू कैन सस्टेन। सो इट्स अबाउट प्राइसिंग स्ट्रेटजी, कि बिजनेस करने से समझ आएंगी चीजें, बिल्कुल। 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 ये वही है ना, ये करके पहले से कोई बता भी देता आपको नहीं क्लियर होगा, राइट। समथिंग यू लर्न बाय बीइंग इन देयर। राइट, मतलब एक इस चीज की रिक्वायरमेंट काफी है मार्केट में, बिकॉज एट द एंड अभी जैसे कि एक फिस्कल ईयर का रिपोर्ट आई है पिछले साल की, आपको पता है टेक ले ऑफ बहुत चल रहे हैं, टीसीएस ने भी ले ऑफ कर दिया, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, मेटा सब ले ऑफ करे जा रहे हैं, बिल्कुल। मेजोरिटी टेक पीपल है या फिर मैनेजर्स है, राइट। बट ग्रोथ देखी गई है, एंड इट्स वन टाइम लाइक यू कैन से वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रोथ इन दिस इंडस्ट्री, कि थेरेपिस्ट काफी हायर हुए पिछले साल, थेरेपिस्ट और मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर्स की ग्रोथ बढ़ रही है, ठीक है। वहां पे हॉस्पिटैलिटी की भी बढ़ रही है, साथ में कुछ वेलनेस के और हो गए, जैसे हॉस्पिटल्स हो गए, ऑफलाइन नर्सेज, इन सब की बढ़ रही है, डॉक्टर्स की भी बढ़ रही है, बट टेक की, मैनेजर्स की जो वैसे रोल्स हैं वो कम हो रहे हैं, और साथ में थेरेपिस्ट का यहाँ पे बढ़ रहा है। यू कैन सी द इंडस्ट्री में ग्रोथ तो है यार, ठीक है। बट अगर आपको एक बिजनेस वैल्यू एक चीज बताता हूँ मैं, कि मेजोरिटी जो प्रीमियम स्कूल्स है, जो प्रीमियम चैन ऑफ स्कूल्स है, जो पैन इंडिया चल रहे हैं, चाहे आप दिल्ली में ले लो, चाहे आप किसी भी टीयर 3 सिटी में भी जो प्रीमियम से प्रीमियम स्कूल्स होते हैं, उसमें एक काउंसलर आपको मिलेगा, ठीक है, एक से ज्यादा भी कई बार मिलेंगे। हाँ, एक होता है, काफी बिल्कुल। काफी बिल्कुल। उनके जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं वो शायद नहीं रखते, तभी वो कॉम्पिटिटर्स वो क्रैक नहीं कर पा रहे हैं वो बोर्ड, क्यों? क्योंकि आपका जो रिटेंशन रेट है, जो आपको पता है कि आपका बच्चा छोड़ के नहीं जाएगा स्कूल, राइट, वो काउंसलर की वजह से काफी ज्यादा अच्छा हो जाता है।
आपको एक चीज बताता हूँ, अगर जो आपका स्टूडेंट है वो कुछ फेस कर रहा है, अगर काउंसलर के पास वो होके आ रहा है एंड यू आर पेइंग काउंसलर अ गुड अमाउंट, वो आपने हायर कर रखा है, तो वो स्टूडेंट को सेफ फील हुआ, वो स्कूल में उसका आने का मन करेगा। ठीक है, वही वाली चीज जहाँ पे नहीं है, वो किससे बोले? वो घर आके बोलेगा, अगले दिन पापा मम्मी से बोलेगा भाई मैं स्कूल छोड़ के जा रहा हूँ, ठीक है, मुझे दूसरा स्कूल चाहिए। ठीक है, ऐसा ही कॉर्पोरेट्स में भी होता है। कॉर्पोरेट्स में मेनी कंपनीज प्रोवाइड एम्प्लॉय बेनिफिट्स के अंडर कि साइकोलॉजिस्ट से आप बात कर सकते हो, वीकली हम्म। चेक-ins होते हैं, मंथली चेक-ins होते हैं, विजिट्स होती हैं साइकोलॉजिस्ट की, वहां पे रिटेंशन रेट बढ़ जाता है। ठीक है, सो बिल्कुल। दिस इज ऑल्सो थिंग, एक साइकोलॉजिस्ट की वैल्यू आपके एम्प्लॉय रिटेंशन में भी है, आपके क्लाइंट रिटेंशन में भी है, आपके स्टूडेंट रिटेंशन में भी है। ठीक है, द थिंग इज आपकी इट इज सक्सेस रेट में भी है। सक्सेस रेट में भी है। ठीक है, इवन आपको सेल्फ रियलाइजेशन जब होता है तो आपको बर्न आउट नहीं होता, आपको पता रहती है क्या चीज करनी है क्या चीज नहीं करनी, माइंडफुलनेस आती है। ये काफी चीजें हमने हमें काफी लोगों को लगता है, स्पेशली जेनजीज को अब काफी लगने लग गया है कि यार ये सब तो ऐसे ही है भाई, ठीक है, जिंदगी में चिल करो, योलो लाइफ, यू ओनली लिव वंस, वगैरह वगैरह, बट एट द एंड आफ्टर 3-4 years they will start realizing it. I am also in that age bracket, but yeah, so it's like ये काफी mentality हो गई है। So even psychologists are very important for this world. What I personally feel is because they have a degree and specialization in a field that can help you burnout से भी, आपके स्ट्रेस से भी, आपके एम्प्लॉय रिटेंशन से लेकर आपके सक्सेस रेट तक, दे कैन प्रोवाइड इमेंस बिल्कुल। बेनिफिट। ये चीज व्हाट आई जस्ट वांट योर व्यू इनटू दिस कि ये चीज बताए कैसे लोगों को, बिकॉज आपकी डिग्री में ये सब आपको पढ़ाया गया है और आपके पास ये स्किल्स है, क्या हम्म। इसे सोशल मीडिया पे एंगेजमेंट के थ्रू बताया जाए, या फिर ऑफलाइन मीटअप्स पे जाके बताया जाए, या ऑनलाइन मीटअप्स पे? सो व्हाट स्ट्रैटेजी डू यू कंसीडर कि मैं ऑनलाइन मीटअप पे जाऊंगी, ऑफलाइन पे जाऊंगी, फिर लोगों से कनेक्ट करूंगी या मैनेजर से बात करूंगी सीधा? व्हाट डू यू थिंक, लाइक आप स्ट्रैटेजी क्या फॉलो करते हो अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस को डाइवर्सिफाई करने में? बिकॉज बहुत अलग अलग रोल्स के लिए, बहुत अलग अलग पोजीशंस हम्म। पे और अलग अलग लाइफ स्टेजेस पे साइकोलॉजिस्ट काम आते हैं, राइट? सो इस पे दो चीजें हैं, पहला आप उसे मार्केट कैसे करते हो, आई मीन लाइक कैसे लोगों के पास जाते हो, सेकंड लाइक काफी टाइम हो गया प्राइवेट प्रैक्टिस में, सो आपकी खुद की टारगेट ऑडियंस क्या है, या फिर आपको लगता है कि मैं इतनी एज ब्रैकेट पे ज्यादा फोकस करती हूँ, तो आप कैसे लेके आते हो क्लाइंट? ठीक। सो वन थिंग यहाँ पे सबसे पहले क्लियर करना चाहूंगी कि आपकी डिग्री और आपकी पढ़ाई आपको थेरेपी नहीं सिखाती। दे गिव यू अ ब्रीफ इनटू द ह्यूमन ब्रेन, कैसे काम करता है ब्रेन, कहाँ कहाँ इफेक्ट कर सकता है, क्या क्या थ्योरीज लगी हैं चीजें सिखाने के लिए। थ्योरीज को यस वी कैन यूज देम हियर एंड देयर समहाउ, बट जो प्रॉपर आप कहते हो डिग्री सिखा रही है, नहीं डिग्री नहीं सिखा रही है। डिग्री मेरे पास भी 3 है, बट मैं नहीं बोल सकती कि मैं उनकी वजह से सीखी हूँ। आई लर्न कॉज ऑफ माई मेंटर्स एंड कॉज ऑफ माई एक्सपीरियंस नाउ। मेरे क्लाइंट से मैं सीखी हूँ बहुत कुछ। आपको नहीं पता होता क्लाइंट हम्म। किस माइंडसेट से आ रहा है। मैंने एक क्लाइंट का इंसोम्निया ट्रीट करने के लिए उनके सेशन प्रिपेयर किए थे, एंड नेक्स्ट वीक दे कम अप की ब्रेकअप हो गया मैम। अब आप इंसोम्निया ट्रीट करने बैठो कि क्या ब्रेकअप करोगे, आपकी प्लानिंग नहीं चलती वहां पे, राइट? यू हैव टू हेल्प राइट। देम विद द ब्रेकअप फर्स्ट, पहले वो वहां से रिकवर करे, हील करे, देन वी कैन थिंक अबाउट इंसोम्निया सम अदर टाइम। अभी तो प्रेजेंट प्रॉब्लम पे काम करना पड़ेगा हमको। हम नहीं कह सकते कि नहीं हमने इंसोम्निया पढ़ा है हम तो इंसोम्निया करेंगे, नहीं हो सकता, दैट्स नॉट द थिंग। तो डिग्री का नहीं, बट हाँ डिग्री का इम्पोर्टेंस है, ऑफ कोर्स देयर इज अ बेस टू इट, बट थेरेपी सीखनी है तो यू हैव टू लर्न फ्रॉम अ थेरेपिस्ट और यू हैव टू लर्न फ्रॉम स्पेशलिस्ट केस। फर्स्ट थिंग। सेकेंडली, डाइवर्सिफाई की आपने बात करी, डाइवर्सिफाई के लिए हम लोगों ने स्कूल्स में बहुत मेजरली अपने जो करियर काउंसलिंग के लिए बेसिकली हम लोग स्कूल्स में जाते हैं एंड वी टॉक टू द स्टूडेंट्स। आजकल हमारे पास वो मिनी करियर काउंसलिंग फॉर्म्स भी आ गए हैं जो हम लोग एक टाइम पे 100 बच्चों को दे सकते हैं, लेकिन फिर तो हम स्कूल से जाके वर्कशॉप करते हैं, एंटी बुलिंग वर्कशॉप करते हैं, एंटी रैगिंग वर्कशॉप करते हैं। अब बच्चों को सेक्सुअल अब्यूज प्रिवेंशन के लिए हम लोग वर्कशॉप्स करते हैं, वो हम लोग स्कूल में जाकर करते हैं अपने प्राइवेट प्रैक्टिस को डाइवर्सिफाई करने के लिए कहीं ना कहीं। वी गो देयर, वी टॉक टू स्टूडेंट्स, वी टॉक टू टीचर्स आल्सो कि उनके दिमाग में क्या है, उनका कोई बर्नआउट का केस तो नहीं हो रहा।
टीचर से मोस्टली इंडिविजुअली या 10 के ग्रुप में बात होती है, बट स्टूडेंट से वी कैन टॉक इन द क्लास, उनके अकॉर्डिंगली, एज के अकॉर्डिंगली बात होती है क्योंकि वहाँ पर रिगार्डिंग द कंपनीज एसोसिएटेड, जो हमारे बड़े बड़े व्हाट डू कॉल देम, एमएनसीज करके हैं, वहाँ पे वी टॉक अबाउट वर्क लाइफ बैलेंस मैनेज करने के लिए वहाँ वर्कशॉप्स करने दो, या वहाँ पर लेटेस्ट कम वीकली हम लोग आ सकते हैं, वी कैन विजिट पे विजिट, और आपके हम लोग 5 एम्प्लॉयज को वीकली देख के जा सकते हैं, उतना हम टाइम लिमिट लेके चलते हैं। एंड वहाँ पे भी अगेन कॉन्फिडेंशियलिटी की बहुत बहुत क्लियर करनी पड़ती है कि हम कुछ भी शेयर नहीं करने वाले कि वहाँ क्या चल रहा है, हम आपसे नहीं करेंगे। वो भी हमें बहुत क्लियरली, हमारे कॉन्टैक्ट्स हमें बहुत क्लियर रहते हैं, हमें पता है उनको क्या देना है क्या नहीं वाला चीज। देन यू गो टू ना, मोस्टली हम लोग जब नेटवर्किंग की बात करते हैं, देन वी गो टू दिस कैफेज जो होते हैं बड़े वाले, देयर वी कॉल पीपल, वो यू माइट हैव हर्ड सिप एंड पेंट करके आजकल कुछ नया कंसेप्ट चल रहा है, वेयर पीपल हैव अ ग्लास हम्म। ऑफ समथिंग इन देयर हैंड, कॉफी ले लो और ड्रिंक्स ले लो एंड दे आर पेंटिंग। वो भी एक तरीके का हमारे वर्कशॉप्स ही हैं टू मेक अस मेक देम अवेयर कि हम लोग यहाँ बैठे हैं, वी आर देयर टू हेल्प यू, इफ यू अंडरस्टैंड हाउ दिस थिंग वर्क्स वी कैन हेल्प यू देयर आल्सो। डाइवर्सिफाई करने के 3-4 ऑप्शंस अभी हम लोग को मिले इस टाइम पे, दीज हम्म। आर ऑप्शंस जो हम लोग अपने आप में ट्राई कर चुके हैं एंड दे हैव प्रूवन सक्सेसफुल फॉर अस। तो उसके लिए आई कैन वाउच फॉर कि हाँ ये 3-4 पक्का से काम करते ही करते हैं, वो पक्का है। सोशल मीडिया के थ्रू भी हम लोग ट्राई करते हैं, बट सोशल मीडिया ऐसा है कि बहुत लोग अभी भी हमारे यहाँ अभी भी हिंदी स्पीकिंग ऑडियंस ज्यादा है, देखा जाए तो। कहने की बात है, पब्लिक स्पेस हम लोग जहाँ रहते हैं सिटीज में, वहां पर इंग्लिश चलता है, राइट, पर हम लोग कंटेंट भी इंग्लिश में निकाल रहे हैं ऑलमोस्ट ऑल ऑफ अस। तो अभी रिसेंटली हमने एक वेंचर स्टार्ट किया जहाँ हम एक पोस्ट हफ्ते में हिंदी में ही करते हैं, जान के भी डू इट ओके। इन हिंदी, प्रॉपर हिंदी में डालते हैं, ताकि वो उसको जो टारगेट ऑडियंस है उनको भी थोड़ा टार्गेट करे, उनको भी समझ में आए कि हम थेरेपी की बात क्या करें। कि वहां लगता है हम्म। अभी भी थेरेपी तो हीरो का कॉन्सेप्ट है, थेरेपी इज अ लग्जरी थिंग इज व्हाट दे थिंक। तो हम उसको भी हम्म। नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, दैट इज अ नीड ऑफ द, दैट इज नॉट अ लग्जरी थिंग, वो भी आपको नीड है उसकी। दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू देयर आल्सो, कि हम सोशल मीडिया को भी उस वे में लेके जा रहे हैं कि हम लोग वहां पे थोड़ा हिंदी कंटेंट भी लेकर आए। इंग्लिश तो चलो है ही है हर जगह, रीजनल कंटेंट की हमने बात करी थी, वो अभी तक हमारा मतलब जा नहीं पाया, पर्सनली वो मैंने ट्राई किया, तो वो मैं इतना श्योर नहीं हो पाई उसको लेकर, बट क्या हिंदी इंग्लिश तो हमने कर दिया एटलीस्ट, एंड आई कैन सी हिंदी कंटेंट पे जो क्वेश्चंस और जो क्वेरीज हमें आती हैं, दोज आर वेरी इंटरेस्टिंग। बहुत जगह तो उनको पता भी नहीं कि हम लोग कर क्या रहे हैं, कहते हैं आप बात ही तो करते हो, द कॉमन थिंग, तो मोस्ट कॉमन मिथ भी है आपकी, बात ही तो करते हो आप। तो अभी भी हम बात ही कर रहे हैं फिलहाल तो, बट या ठीक है, दैट इज हाउ इट वर्क्स, अवेयरनेस ऐसे आएगी, इन्हीं क्वेश्चन से आएगी। यस। सो एक क्वेश्चन था हमारी टीम से भी कि ऐसे कौन से स्किल्स होते हैं प्राइवेट प्रैक्टिस में जो कि एक थेरेपी रूम के बाहर होते हैं या फिर ऑनलाइन सेशन के बाहर होते हैं जो कि चाहिए अगर आपको प्राइवेट प्रैक्टिस रन करनी है तो। आई थिंक सबसे मेजर फॉर बीइंग इन दिस फील्ड, सिर्फ प्राइवेट प्रैक्टिस लेनी एज अ साइकोलॉजिस्ट टू, समथिंग यू नीड इज ऑब्जर्वेशन। बहुत दिक्कत है अभी की जनरेशन में, सब फोन में रहते, सबको लगता है फोन सब कुछ बताएगा, नहीं। ऑब्जर्व पीपल अराउंड यू एंड आपको दिखेगा कितना कुछ है। सो माय इंस्टाग्राम टाइम, मैक्सिमम टाइम मेरा स्पेंड होता है रील्स देखने में, नहीं कमेंट्स पढ़ने में। आई ट्राई टू अंडरस्टैंड लोगों के अंदर क्या चल रहा है, व्हाट आर दे ट्राइंग टू से, व्हाट आर नेटिजन ही बोल लो, उनको चैटबॉट ही बोल लो, बट दे समटाइम गिव यू एन ओपिनियन जो आपको नहीं पता कि ऐसा भी आ सकता है। अंडरस्टैंडिंग पीपल्स ओके। पीओवी यहीं से आएगा आपको, यहीं से समझ में आएगा कि लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू है क्या एग्जैक्टली। क्यों आप थेरेपी रूम में आपको न्यूट्रल लेना पड़ता है, यू कांट से कि नहीं मैं ये सपोर्ट करूँ तुम भी यही करो, वो हम नहीं कर सकते आपको। So that is how हम्म। you learn understanding and respecting people's POV. You don't आप ना वहाँ पे इनिशियली ये था कि हम लोग कमेंट करने का मन करता था कि why don't you shut up, like why what the hell are you speaking, पता भी है तुम बोल क्या रहे हो। बट नाउ इज लाइक हाँ। अच्छा ये भी एक आइडिया था, अच्छा ओके कोई बात, फिर मचेगी कुछ भी होगा, बट यू नो हाउ टू कंट्रोल दैट, वो आप आउटसाइड थेरेपी रूम एज साइकोलॉजिस्ट आपके लिए अच्छा रहता है। यू अंडरस्टैंड आप कहाँ स्टॉप हाँ। लगाना है, कहाँ ब्रेक करना है, कहाँ समझने के लिए बहुत चीज। तो मेरा भी मैक्सिमम टाइम कमेंट पढ़ने में ही जाता है, हर जगह पे कमेंट पढ़ती हुई मिलूंगी, रील कम देखती हूँ, कमेंट ज्यादा पढ़ती हूँ। दैट इज हाउ आई स्पेंड माय दैट इज टाइम गुड आउटसाइड इनसाइट। ना। दैट इज गुड या इनसाइट। गो एट गो। I love doing that. I talk to people regarding that also. Comments पढ़ देना, तू comments क्यों पढ़ती रहती है? Like, that is how I learn to understand people. That is my way of understanding them. अच्छा, regarding private practice,
समथिंग आई वुड से आउटसाइड थेरेपी रूम, आपको आपके सीनियर थेरेपिस्ट को देखना पड़ेगा, नॉट blindly follow them, but look at how they're moving forward, look at what exactly are they doing. Secondly, you have to have that skills, आपको उनकी जैसे स्किल्स भी बिल्डअप करनी पड़ेंगी। मैं वही अगेन कह रही हूँ कि blindly फॉलो नहीं करना है कि नहीं इन्होंने किया तो हम भी करेंगे, नहीं। यू हैव टू थिंक कि आपको क्या एग्जैक्टली, यू टॉक्ड अबाउट नीश आल्सो लास्ट टाइम, हम भूल गए। तो जब आपको आपकी नीश पता है तो आपको आपकी स्किल्स भी उस लेवल पे ब्रश अप करनी पड़ेगी। हम बोले कि हम वही, अब मेरे को 5 साल हो गए तो फीस मैं इतनी बढ़ा रही हूँ, नहीं। यू हैव टू हैव दैट स्किल्स आल्सो। स्किल्स कहाँ से है कि आपको पढ़ना पड़ता है रेगुलरली, यू हैव टू ब्रश अप। अभी इस टाइम पे मेरे पास 3 बुक्स पढ़ी हुई जो मुझे पढ़नी है, वो आधी आधी खुल के पढ़ी हुई है कि मुझे ये भी पढ़नी है, मुझे तो इतना इंटरेस्टिंग है कि मैं आधी ये पढ़ रही हूँ, आधी वो पढ़। स्किलिंग अभी भी चल रही है, अब स्किलिंग चलती रहेगी लाइफ लॉन्ग। बस पीपल आर ग्रोइंग हर डेकेड में, जिससे कि आईक्यू बढ़ता है, नहीं मेरे को लगता है हर 3-4 साल में बढ़ता है आईक्यू, एंड द बिहेवियर पैनल्स कंप्लीटली चेंज होते हैं। सेकेंडली, यहाँ पर जो हमको पढ़ाते हैं स्कूल कॉलेजेस में, वो साइकोलॉजी होती है वेस्टर्न साइकोलॉजी। अब रिसेंटली वो इंडियन साइकोलॉजी के ऊपर ज्यादा वो कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं। नेट के एग्जाम में भी अभी 1-2 साल से वो वापस आई है सिलेबस में, पहले नहीं थी। अब योगा उन सब पे ध्यान दे रहे हैं वो लोग। इनिशियली सब वेस्टर्न ही पढ़ रहे थे, हम लोगों ने पूरी वेस्टर्न पढ़ी है। तब मुझे इंडियन में इंटरेस्ट था, तो अब मैं भी इंडियन पढ़ रही हूँ उन लोगों के साथ साथ। आई एम ऑल्सो लर्निंग दिस थिंग, ठीक है। वो भी आपको आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए आप स्किलिंग कहाँ करनी है, कब करनी है, कितना इन्वेस्ट करना है, एंड कितना टाइम आपको उसको दे सकते हो, कितना टाइम आप स्पेयर कर सकते हो कि आप स्किलिंग करो। थर्ड थिंग आई वुड से हियर, मैंने फर्स्ट आपको बताई थी, आपको समझना पड़ेगा अपने साइकोलॉजिस्ट को देख के। थर्ड इज अपस्किलिंग। थर्ड आई वुड लाइक टू से इज कि आपको आपका लेवल पता होना चाहिए कि कहाँ पे आप इमोशनली स्टेबल हो एंड कहाँ पे आप बर्नआउट रीच कर रहे हो। आपको आपको लेवल पता होना चाहिए थेरेपी रूम के बाहर। टू ग्रो प्राइवेट प्राइवेट प्रैक्टिस टू एज अ पर्सन आल्सो यू नीड टू हैव दीज थिंग्स विद यू। आपको समझना पड़ेगा कैसे उनके चल रहे हो, कहाँ पे जा रहे हो, कहाँ आपका बर्नआउट होने वाला है। तो वहां यू स्टॉप योर सेल्फ एंड यू नो टू टेक अ ब्रेक। आपको ब्रेक लेना पता होना चाहिए कहाँ पे लेना है। प्राइवेट प्रैक्टिस में अगर आप ब्रेक नहीं लोगे, आप अपना कुछ नहीं कर सकते, आपके क्लाइंट्स लूज होंगे ही होंगे, बिकॉज आप उनको कुछ दे नहीं पा रहे हो, आप खुद ही मोस्टली बर्नट आउट। आप उनके साथ क्या ही करोगे पता नहीं, उनके साथ क्लाइंट थेरेपी रूम में क्या होने वाला है। एंड दे वोंट कम बैक टू यू अगर उनको कुछ नहीं मिलेगा। सीरियसली क्लाइंट्स आर वेरी ब्रूटल, वो बोलेंगे नहीं हमें कुछ समझ में नहीं आया, हम वापस नहीं आएंगे। आपने क्लाइंट लूज कर दिया अपना हमेशा के लिए। वो देखना पड़ेगा कि बर्नआउट आपको अपना खुद संभालना पड़ेगा। ये थेरेपी रूम के बाहर की चीजें हैं, थेरेपी रूम में आप ये नहीं लेके जा सकते अपने साथ। बर्नआउट्स नहीं लेके जा सकते, आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू समझ रहे हो बट आप उसके लिए अपना स्ट्रांग ओपिनियन नहीं लेके जा सकते। मैं यहाँ किस पार्टी को सपोर्ट करती हूँ वो मेरे थेरेपी रूम में नहीं जाएगा। थेरेपी रूम में मैं एक ब्लैंक स्लेट हूँ, आप जो बोलोगे यस आई एम विद यू। ये नहीं कह रही ब्लाइंडली, अगर कोई बोले मैंने मर्डर किया बहुत अच्छा किया, नहीं कर सकते आप। ऑफ कोर्स यू हैव टू अंडरस्टैंड उसके पीछे क्या है क्या नहीं। बट ठीक है, वहां पे यू कांट हैव दैट स्ट्रांग ओपिनियन कि इसको मैं जेल में डालूंगी। आपको सुनना पड़ेगा। अगर हमने जैसे जेल में भी गए, हम लोग तिहाड़ जेल गए थे अपने सीनियर के साथ, एंड वी सी हाउ पीपल डील विद इट। वहां भी कंपैशनेट होना पड़ता है आपको, इसीलिए लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू समझना है, उसके थ्रू चलना इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी इमोशनल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है वहां पे। आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है वहां पे, एंड लर्निंग फ्रॉम योर सीनियर्स, गेटिंग इंस्पायर्ड फ्रॉम योर सीनियर्स। सोशल मीडिया पे देखकर नहीं कि भाई ये तो इतना अच्छा कर रहे हैं, हम नहीं, वो नहीं होता। कंपेयर नहीं कर सकते आप, अपने आप से कंपेरिजन रखना पड़ेगा। थेरेपी रूम के बाहर ये सारी स्किल्स है। नेटवर्किंग अगेन, नेटवर्किंग को तो हम जितना एम्फोसिस करें मुझे लगता है कम ही रहेगा। नेटवर्किंग अगेन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस केस। थेरेपी रूम के बाहर ये सब तो चाहिए ही चाहिए आपको, तब आप रूम में एक अच्छे थेरेपिस्ट बन के रह सकते हो। दैट इज हाउ यू कैन बी वन। लॉन्ग टाइम यू आर इनटू दिस इंडस्ट्री, सो ये बहुत लंबा स्पैन है। काफी शिफ्ट आया है। अगर आप पिछले 5 साल में देखो ना, कोविड आया, कोविड के बाद एक बहुत ही हायर रीच हुई आपके ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की, आपके कंटेंट कंजप्शन की काफी बिल्कुल हाई हुई। उसकी वजह से बिल्कुल परसेप्शन बिल्डिंग काफी फास्ट हो गई, और काफी ज्यादा जो बेस लेवल्स होते हैं ना आपके, क्योंकि एट द एंड लोग बस मूवी सोचते हैं कि हम एंटरटेनमेंट के लिए देखने जा रहे हैं। एट द एंड मूवीज और ये सारी चीजें आपके बिलीफ सिस्टम नरिश करती हैं, आपको डिफाइन करती बिल्कुल हैं वो सारी चीजें। तो यही सारी जो चीजें हैं, राइट, कि आपकी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और कंजम्पशन बढ़ गया है, सो उसकी वजह से बिलीफ सिस्टम भी काफी जल्दी जल्दी चेंज होने लग गए। आपका सोशल मीडिया कंजम्पशन इतना बढ़ गया आपका, अगर आप देखोगे आपका मेटा बहुत ही एग्रेसिवली, अभी रिसेंटली क्वार्टरली रिजल्ट आया मेटा का, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप का यूजेज एआई के बाद रिकॉर्ड टाइम हाई हो गया है। ठीक है, दैट इज बिल्कुल द थिंग, कंजप्शन इतना हाई हो चुका है अब।
एक कंटेंट का, जिसकी वजह से बिलीफ सिस्टम बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है लोगों का, इमोशनल इंस्टेबिलिटी भी आ रही है। अगर आप देखोगे तो जो एक आपका स्पैन होता है कंसंट्रेशन का, वो भी कम हो चुका है, राइट? सो बिल्कुल अगर आप ये बिल्कुल, नो सारी चीजें डाउट। देखोगे, पिछले 5 साल में बहुत चेंज हुआ है। सो क्या इस चेंज के साथ आपने प्रायर प्रैक्टिस अडेप्ट की है, या फिर आपके क्लाइंट शिफ्ट हुए हैं, या फिर आपने नीशेस चेंज किए हैं? एग्जैक्टली क्या रहा है पिछले 5 साल में? अगर आप पूरा 5 साल का एक मैप देखोगे आपका, तो क्या क्या चेंजेस आए? राइट। सो इनिशियली तो ये था कि जो भी क्लाइंट है देखेंगे समझेंगे, बिकॉज आई वाज मैं मेरी मास्टर्स क्लिनिकल में थी, बट मैं काउंसलिंग की तरफ ज्यादा थी। मैं क्लिनिकल बिकॉज आई वाज वर्किंग एट द क्लिनिक उस टाइम पे, हॉस्पिटल में नहीं काम कर रही थी। तो मैंने जान के काउंसलिंग के केस देखा। वैसे भी व्हेन यू आर नॉट एन एमफिल यू कांट टेक क्लिनिकल केसेस। तो मैं काउंसलिंग के केसेस भी देखती थी। दैट वाज मेजरली एंजाइटी डिप्रेशन, इनिशियली ये था। देन कोविड का वेव आया तो लोगों में फिर वो लोनलीनेस का आ गया, डिप्रेशन का आ गया, लोगों को हेल्थ एंजाइटी हो गई, स्लीप डिप्रिवेशन हो गया, बिकॉज घर में कुछ कर नहीं रहे थे, घर में बैठे बैठे पूरे दिन आपको नींद भी नहीं आएगी, इजीली वो भी एक इशू हो गया था। कुछ लोग ज्यादा सो रहे थे, कुछ कम सो रहे थे, वो देख रहे थे। देन दिस थिंग केम ऑफ द एडिक्शन पार्ट, जो ये लास्ट 2-3 इयर्स में, जो आपने बताया, लास्ट 2-3 इयर्स में बहुत ज्यादा एडिक्शन का केस आया। तो वी स्टार्ट आई वाज एट दैट टाइम आई वाज वर्किंग एट अ हॉस्पिटल 2-3 इयर्स बैक। मैं हॉस्पिटल में इंटर्नशिप या कुछ ऐसे कर रही थी, आई डोंट रिमेम्बर अभी क्या। वहां पे आई वाज वर्किंग एंड आई फाउंड आउट एक सीनियर चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट इज वर्किंग ऑन अ गेम डी एडिक्शन थिंग देयर। बच्चों को जो गेम की हैबिट लगती है उसकी डी एडिक्शन थी। दैट इज समथिंग दैट कॉट माई एंड आई वाज लाइक व्हाई नॉट, इस पे कुछ करना चाहिए। दिस इज व्हाट आई वाज टेलिंग अबाउट गेटिंग इंस्पायर्ड फ्रॉम योर सीनियर। यहाँ मैं इंस्पायर होकर मैंने कहा मुझे भी इसमें कुछ करना चाहिए, एंड दैट इज व्हाट आई स्टार्टेड लर्निंग अबाउट स्क्रीन एडिक्शन। और स्क्रीन एडिक्शन से क्या होता है, दैट इज व्हेन आई रीच्ड वर्चुअल ऑटिज्म, जिसके ऊपर मेरी अभी रिसर्च चल रही है। मैं खुद पर्सनली उसके ऊपर रिसर्च कर रही हूँ। मैंने बहुत साल से कोशिश करी मेरे को कुछ साथ करने वाला मिल जाए, नहीं मिला तो स्टार्टेड डूइंग अलोन, क्योंकि मुझे उसमें मजा आता है वो टॉपिक पढ़ने में। तो वही मैं अकेले अकेले कर रही हूँ, देखते हैं उसका क्या होगा। बट स्क्रीन एडिक्शन इज समथिंग आई लर्न कि वहाँ पे क्या इश्यूज हो सकते हैं। दैट इज समथिंग आई हैव एडेड टू माय नीश रिसेंटली। बच्चों का स्क्रीन एडिक्शन का पार्ट अभी बहुत रिसेंटली ऐड किया है। आई कैन गिव यू अ स्मॉल केस स्टडी हियर। अ मदर केम टू मी सेइंग कि उनका बच्चा 5th तक तो बहुत अच्छा पढ़ा था, 6 पढ़ने में 6 स्टैंडर्ड आते ही वो पता नहीं उसने पढ़ाई छोड़ दी। एंड शी वाज लाइक ये स्कूल नहीं जाता है मैम, हम लोग घर पे नहीं होते तो ये स्कूल नहीं जाता है, टीवी देखता रहता है पूरे दिन। एंड टीवी हटा दोगे तो लैपटॉप देखेगा, लैपटॉप हटाओगे टैब देखेगा, टैब हटाओगे फोन देखेगा, कुछ तो उसके हाथ में होता है। ही गोज टू द वॉशरूम एंड ही हैज लाइक, उसको ऐसा है कि वो सफाई भी नहीं करेगा, बहुत जल्दी बाहर भाग के आ जाएगा, आएगा भी नहीं ढंग से, नहीं वो जस्ट रश आउटसाइड। हम लोग घर में बोलते हैं स्कूल जाओ तो ही वुड लाइक कि नहीं मेरा पेट दुख रहा है, ये सब हो रहा है, आई कांट गो टू स्कूल, और वो बहाने मार के बैठता है। यदि हमने वाईफाई बंद करने की ट्राई करी तो उसने वाईफाई का तरीका ढूंढ लिया दूसरा, कि कहाँ से वाईफाई स्टार्ट कर सकता है, किसका वाईफाई कैच कर सकता है, इसने वो तक कर लिया है। बीइंग एट दिस एज, लाइक ही इज व्हाट 10 और 11 years old, अभी उसने ये करना स्टार्ट कर दिया। दैट इज व्हेन आई फाउंड आउट कि ये प्रॉपर स्टील डिक्शन दिख रहा है। उन्होंने कहा इसकी राइटिंग खराब है। व्हेन आई टोल्ड हिम टू राइट ही रोट वेरी सही, बहुत अच्छा लिखा, कोई दिक्कत नहीं थी। दैट इज व्हेन आई रियलाइज कि स्क्रीन एडिक्शन है, क्लियरली स्क्रीन एडिक्शन दिख रही है यहाँ पे, कि उसको स्क्रीन नहीं छोड़नी है। स्क्रीन छोड़ते ही वो कि मुझे नहीं पता मुझे क्या करना है, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ वाला केस था। तो दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू, स्क्रीन एडिक्शन इस लेवल तक बढ़ गया है। दैट वाज द फर्स्ट केस ऑफ स्क्रीन एडिक्शन आई सॉ, एंड मेरे को समझ में आ गया कि कहाँ जाने वाला है इसके बाद। अभी तो ये बहुत छोटे लेवल पे है कि वाईफाई इंसान कहीं यहाँ से लेना स्टार्ट कर चुका है, बहाने तो बच्चे बनाते ही है, नो प्रॉब्लम देयर। बट दैट इज व्हेन आई रियलाइज। सो यू आर टॉकिंग अबाउट नीश है, तो मेरी स्टार्टिंग हुई थी कि कुछ भी आ जाए, जो भी आ जाए देखा जाएगा, बस नया थेरेपिस्ट एक्साइटेड होता है कि जो भी केस आएगा मैं देख हम्म। लूंगा, आई डोंट माइंड, आई कैन वॉच एंड सी एनीथिंग। पता भी चलेगा ना, कैसे पता चलेगा, वरना यू आर गुड एट और बैड एट व्हाट थिंग। तो वो करते करते समथिंग आई रियलाइज कि मेरे जितने भी एंजाइटी के क्लाइंट्स थे, दे वर लाइक वेरी हैप्पी विद मी, दे वर गिविंग मी वेरी गुड फीडबैक। दैट इज समथिंग आई फाउंड आउट कि अच्छा दिस इज अ थिंग दैट आई कैन वर्क विद। एंजाइटी तो अपने को सिम्टम्स सारे पता ही है, बिकॉज अपने को सब कुछ हो चुका है। तो लाइक ठीक है, इस पे ध्यान देना चाहिए, लेट अस वर्क विद एंजाइटी। धीरे धीरे आई फाउंड आउट कि एंजाइटी के अदर सिम्टम्स, जैसे इंसोम्निया होता है, उसके साथ अटैच वाला भी है, नॉन अटैच वाला भी, प्रॉपर इंसोम्निया भी होता है। उसका भी हम लोग को इनिश में इंट्रोड्यूस करा था, उसमें मुझे लग रहा था इंटरेस्टिंग है। फिर स्क्रीन एडिक्शन आया हम लोग का। अभी रिसेंटली आई हैव डन माय पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रिहैब, तो अब रिहैब में भी डी एडिक्शन रिहैब का कहीं ना कहीं पार्ट भी है, बट रिहैब प्रॉपर रिहैब में भी अब प्लान कर रहे हैं नेक्स्ट जाने का।
the niche keeps on changing as you say, कुछ ना कुछ नया ऐड भी होता रहेगा और चेंज भी होती रहेगी। ऐसा नहीं कि मैं इस पे गई तो मैंने एंजाइटी छोड़ दिया, नहीं, एंजाइटी अभी भी है, एंजाइटी क्लाइंट्स अभी भी आते हैं, दे आर स्टिल वेरी हैप्पी विद मी, वो रहेगा। बट आई एम एडिंग न्यू थिंग्स टू इट, अपस्किल कर रही हूँ खुद को। अभी रिसेंटली सोमैटिक पे पढ़ाई करी कर मुझे बहुत इंटरेस्ट कर रहा था, एंड आई फाउंड आउट कि बहुत इंटरेस्टिंग है, एंड आई इवन गिव द ट्राई विद अ क्लाइंट ऑफ माइन एंड शी वाज वेरी हैप्पी अगेन। तो मुझे दिख रहा है कि मेरे नीश में एक और चीज ऐड हो सकती है कि सोमैटिक थेरेपी भी हम ट्राई कर सकते हैं इस केस में। दिस इज समथिंग यू लर्न बाय अपस्किलिंग एंड यू लर्न बाय ट्राइंग आउट न्यू थिंग्स। हम डर के नहीं बैठ सकते कि नहीं भाई मेरी तो एंजाइटी नीश है, मैं कुछ और करूंगी ही नहीं। उस केस में हाउ विल यू मूव ऑन? तो इसलिए नीश तो आपको हर टाइम पे नई नई कुछ की नीश होती है कि चलती रहती है। साइको ऑन्को वाले हैं जो कैंसर पेशेंट्स के साथ काम करते हैं, उनकी नीश तो वो डिसाइड हो गई। बट मी बीइंग फ्रॉम अ काउंसलिंग फील्ड एंड हैविंग डन क्लिनिकल आल्सो, तो मेरे को नॉलेज है, तो मैं क्यों ना उसको यूज करूं। तो आई गो अबाउट बिहेवियर मॉडिफिकेशन, बीच में समझे तो बिहेवियर मॉडिफिकेशन भी ऐड करा आपने उसमें कि लोगों को जब बिहेवियर प्रॉब्लम होती है कि वो अपना एक्सरसाइज नहीं ऐड कर पा रहे, रूटीन नहीं चेंज कर पा रहे, उसमें भी हम हेल्प करते हैं। तो ये सब नीश ऐड होते गए हैं ओवर द ईयर्स। अभी तो अप्रोक्सीमेटली 10 या 11 चीजें जो मेरे नीश के अंदर, उसमें स्पेशलाइजेशन अलग है पर नीश के अंदर इतनी है। टॉकिंग अबाउट द एज थिंग दैट यू वर सेइंग कि मैंने एज कैसे डिसाइड करी, यस आई इनिशियली मेरे पास ये था कि एजेस द मैक्सिमम दैट आई सॉ वर 20 to 30 के बीच में इनिशियली वही मिल रहे थे मुझे, एनजीओ में भी मोस्टली वही मिले। तो मुझे समझ में आया था कि 20-30 इज समथिंग आई कैन सी। व्हेन आई वेंट टू एक्सप्लोर चाइल्ड साइकोलॉजी वाला पार्ट, जस्ट बीइंग विद द सीनियर प्रैक्टिशनर, उनके साथ बैठ के मैं सब उनके केस ऑब्जर्व कर रही थी, आई वाज लाइक चाइल्ड साइकोलॉजी समथिंग आई एम नॉट गुड एट, आई वोंट बी डूइंग दिस। देख के आपको इतना हो जाता है टाइम के बाद, यू कैन अंडरस्टैंड कि ये मेरे बस की चीज नहीं है, एंड आई वोंट इवन डाइव इनटू दिस, तो बच्चे की लाइफ आपके हाथ में आ जाएगी वहां पर। थर्ड थिंग आई ट्राइड वाज विद द जीरियाट्रिक पॉपुलेशन, दैट वाज अ 50 or something auntie like lady, and she came to me, and उनके साथ पहले I was dealing, they actually made me their daughter, या तेरी बेटी बन जाओ, and that is something वहाँ पे आपको बाउंड्रीज क्रिएट करनी पड़ती है बहुत क्लियर कि एथिकल हम्म बाउंड्री, उनको वो एक्सप्लेन करना इज ऑल्सो डिफिकल्ट उनकी एज में कि यू नो आप मुझे हम्म बेटी नहीं बना सकते, हमारी थेरेपिस्ट और क्लाइंट की बाउंड्री है, एंड यू हैव टू मेंटेन दैट। तो हम्म करते करते इतने साल में समथिंग आई ऑब्जर्व कि आई एम नॉट वेरी गुड विद द जीरियाट्रिक पॉपुलेशन, आई एम नॉट वेरी गुड विद द चाइल्ड साइकोसाइड पॉपुलेशन, बट जो बीच का है दैट इज 18 to 45 इज समथिंग दैट आई हैव अ गुड होल्ड ऑन, एंड दैट इज हाउ आई मेड हम्म इट माय पर्पस नीश कि ये मेरे नीश के अंदर आता है, एंड दिस इज समथिंग आई कैन वर्क विद एंड डील विद। ये करते करते ही पता चला इतने साल में, and ये मैंने सिर्फ एक एक के एग्जांपल दिए, तीन चार देखकर ही एक के मैंने डिसाइड किया कि अच्छा ये चीज मेरे फोर्टे की नहीं है, एंड आई शुड गो विद इट। अंडरस्टूड। सो बेसिकली अभी तक जो मैं समझा हूँ, हमारी जो कन्वर्सेशन हुई है, कि स्टार्टिंग में अगर आप देखोगे, हमने बात की थी कि फाइनेंस के रिगार्डिंग कि थोड़ा टाइम लग जाता है फाइनेंशियली स्टेबल होने में। अभी जो हम बात करें वो नीश डिफाइन होने में, टारगेट ऑडियंस डिफाइन होने में टाइम लगता है। सो ये साथ साथ इंडस्ट्री में आए, आप बहुत ही न्यू हो, आपको पता नहीं है कि क्या टारगेट ऑडियंस आपको फिट करती है, आपको प्राइस स्ट्रक्चर नहीं पता, आपको मार्केट रिसर्च नहीं पता कि कितना प्राइस पॉइंट पे करने को रेडी है, आपको ये सारी चीजें समझने में साल 1.5 साल लग जाता है। उसके बाद आपको बिल्कुल। नीश डिफाइन होने में आपको अलग 1 साल लग जाता है, जहाँ पे आप टारगेट ऑडियंस फिट इन करते हो। फिर उसके बाद व्हेन यू डिफाइंड एवरीथिंग, सो उसी के अंडर एक ब्रैकेट आपका आ जाता है, उसी में आपकी चीजें फिर शफल होती रहती है कि हाँ मेरा एज ब्रैकेट 18 से शुरू होकर 45 तक है, जो कि बहुत बड़ा ब्रैकेट है। इससे ऊपर थोड़ा सा मैं डाइसी हो जाती हूँ, उससे कम फिर डाइसी हो जाती हूँ। इट्स बेटर कि सेंटर में ही इसी के बीच में हम लोग रहे। उसके बाद यू ऑल्सो इवॉल्व विद नीशेस, यू ऑल्सो इवॉल्व विद प्राइस स्ट्रक्चर कि हाँ यार 18 to बिल्कुल। 25 शायद स्टूडेंट्स हो सकते हैं, सो शायद मैं थोड़ा सा हम्म। स्लाइडर स्केल रखूं, ट्रू। 25 से ट्रू। 45 में एक फिक्स प्राइस रखूं। सो ऐसे करके कुछ लाइक आपको क्लैरिटी मिल जाती है, वो क्लैरिटी आने में 1-1.5 साल बिल्कुल। लग जाता है, व्हाट आई बिलीव। कुछ बच्चों को इंटर्नशिप के टाइम पे आ जाती है, व्हेन आई वाज देयर विद द किड्स इन मूलचंद, इंटर्नशिप चल रही थी उनकी, एंड आई फाउंड आउट कि वो लोग बहुत बहुत पहले से ही क्लियर चल रहे हैं कि नहीं हमें तो ये ऑपरेशन देखनी नहीं, हमें चाइल्ड के साथ ही काम करना है, तो बच्चे को पहले से डिसाइड करके आ जाते हैं। दैट्स अ गुड थिंग, आपका टाइम सेव हो रहा है, बट व्हाट इफ यू आर नॉट एबल टू वर्क विद देम प्रॉपर्ली, व्हाट इफ यू फाइंड राइट। योरसेल्फ कि मैं केपेबल नहीं लग रही यहाँ पर,
तब आप क्या करोगे? उस केस में यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल एनफ एंड यू हैव टू एडजस्ट योरसेल्फ अकॉर्डिंगली। आपको समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मैंने सिलेक्ट कर ली तो मैं इसी में फिट हो जाऊंगी, नहीं। सब कुछ ट्राई करते रहना है, बट ट्राई भी ऐसे नहीं किसी को हार्म ना करो उस ट्रायल प्रोसीजर में, बट ट्राई सब कुछ करते रहना। वो उसके अंदर होता है, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत जरूरी है। अगर आप सिलेक्ट भी कर लेते हो फिर राइट भी यू हैव टू वेरी बी वेरी श्योर कि मैं चेंज कर सकती हूँ कल को, एंड इफ नीडेड आई वुड गिव इट अ चेंज। राइट एंड इसी चीज के लिए आई वांट टू ऐड इनटू दिस जो आप बता रहे थे एक केस स्टडी के हिसाब से कि एक स्क्रीन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है चिल्ड्रन में, राइट? सो ये चीज आपको खुद ही प्रेरित करनी पड़ेगी कि आपके आसपास क्या चल रहा है, न्यूज़पेपर पढ़ के शायद, या फिर आपको हल्का सा एक बहुत ही ब्रीफ करके कि जहाँ पे यू नो कि इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, कंजप्शन ज्यादा हो रहा है, वहां पे शायद बिहेवियर बदल सकता है या फिर कुछ नया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल काफी लोग अब जीपीटी से थेरेपी लेने का ट्राई कर रहे हैं, सो वो बिल्कुल। भी एक रॉन्ग वे में जा रहे हैं। सेकंड, एक और चीज जैसे आपने स्क्रीन का बताया, अभी लेंस कार्ड भी ये चीज अभी डिस्कशन में चल रही है। उनका खुद का एक प्रोडक्ट आ सकता है जो माइक और कैमरा के साथ होगा, उसके बाद शायद उसे एडवांस करके आपकी ग्लासेस पे ही वो लोग स्क्रीन सेम। लेके आएंगे। आपका वीआर सेट्स आ चुके हैं, राइट? आपका अभी जीपीटी जो ओपन एआई है उसकी पेरेंट कंपनी, वो भी एक हम्म। वेरिएबल लाने हम्म। की ट्राई कर रहे हैं। उन्होंने एक वॉच का पेटेंट किया है, राइट? हम्म। उन्होंने एक वॉच का पेटेंट किया। अभी एप्पल ने किया एक वॉच का पेटेंट जिसमें कैमरा भी है। तो क्या वो कैमरा से और स्क्रीन से कुछ मर्ज करके बनाएंगे? सो अभी जो आने वाले 5-10 साल है वो बहुत ही कंजम्पशन बिहेवियर को चेंज करेंगे, जो कि बिल्कुल। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होगा। जैसे कि अभी फोल्ड स्क्रीन चल रहे थे अभी, जैसे कि आपने बोला कि फोन को हम्म। छोड़ता तो वो हम्म। टैब पे चले जाता है, टैब छोड़ दो स्क्रीन पे चले हम्म। जाता है। अब एक ही फोन वो टैब बन सकता है, राइट? हाँ, वो ऐसा है। तीन अलग अलग स्क्रीन बन सकती है उसके अंदर। सो तीन अलग अलग स्क्रीन से मैं तीन अलग अलग चीजें चला रहा हूँ एक ही डिवाइस के अंदर। सो मेरा टेंशन स्पैन कितना कम है, मैं इस स्क्रीन से इस स्क्रीन पे, इस स्क्रीन से इस स्क्रीन पे मिली सेकंड्स में जंप कर रहा हूँ। सो मुझे पता है मैं बिल्कुल। कंसंट्रेट नहीं कर पाऊंगा। और वही अगर मेरा कोई छोटा भाई होता या फिर कोई छोटा एक बच्चा होता वो चीज कर रहा होता, उसे लॉन्ग टर्म के लिए बहुत इफेक्ट देती है ये चीज, बिल्कुल। राइट? वर्चुअल और वो ऑटिज्म वही चीज है कि आपको ऑटिज्म है नहीं बाय बर्थ, बट वो आपको 3-4 ईयर्स के में आ रहा है, ऑटिज्म के सिग्नल्स एंड साइंस दिखा रहा है। दैट इज व्हाट आई एम राइट रिसर्चिंग ऑन। वर्चुअल ऑटिज्म है वो चीज कि वो आपको वर्चुअल चीजों ने दी है, आपको फोन ने टैब ने वो चीज दी है। ऑटिज्म नहीं है बाय बच्चे में बर्थ नहीं आई पैदाइशी। है, बाय बर्थ नहीं आई है वो, एग्जैक्टली। राइट? सो यही चीज साइकोलॉजिस्ट को शायद अप टू डेट मार्केट में रहना पड़ेगा ये चीज प्रिडिक्ट करने के लिए कि शायद ये चीज आ सकती है, तो मैं अभी से पढ़ाई शुरू कर दूं, राइट? तो दिस इज बिल्कुल। वन थिंग दैट दे कैन डू। कि अभी आपने बताया नेटवर्किंग, ऑब्जर्वेशन, ये सारा एक क्रूशियल रोल होता है एक थेरेपिस्ट के लिए कि ये चीजें आपको आनी चाहिए ताकि आप प्रायर प्रैक्टिस ठीक से कर पाओ या फिर इवन साइकोलॉजी इंडस्ट्री में सस्टेन कर पाओ। हम्म। बिजनेस न्यूआंसेस क्या क्या चाहिए होते हैं अगर आप थेरेपिस्ट की बात करो, कि आपको काफी ऐसे होते हैं। जैसे मैंने एक स्टडी की एंड आई फिगर आउट कि काफी अर्ली करियर थेरेपिस्ट अगर लॉन्च करते हैं अपनी प्रायर प्रैक्टिस, तो बिल्कुल ही फ्रेश ग्रेड्स है मास्टर्स के, तो 6 महीने के अंदर क्विट कर देते हैं। एंड फिर वो फुल टाइम जॉब में जाते हैं या पार्ट टाइम जॉब में जाते हैं, फिर वो नियरली 1 to 1.5 ईयर के बाद फिर से रिस्टार्ट करते हैं, तब उनका स्टेबल चलता है, राइट? इस चीज पे व्हाट इज योर टेक कि आपको मास्टर्स के बाद अगर आप जस्ट स्टार्ट कर रहे हो तब आपको क्या याद करना चाहिए, क्या आपके दिमाग में होना चाहिए, और ऐसा क्यों होता है कि वो 6 महीने के अंदर क्विट कर देते हैं? तो क्विटिंग का बात अगेन वही आएगा उसके अंदर कि उनको जो उम्मीद लेके वो आए थे कि भाई 6 महीने के अंदर तो पैसा फ्लो करना स्टार्ट कर देगा, क्लाइंट्स की भरमार हो जाएगी गेट के बाहर। वो नहीं होता तो वो डिमोटिवेट होकर कहीं ना कहीं क्विट करते हैं, बिकॉज हम्म, उनको एक रियलिटी पिक्चर नहीं दी होती। अब बहुत राइट। जगह ऐसा है कि साइकोलॉजिस्ट क्लियरली बोल देते हैं, रियलिटी पिक्चर देते हैं कि 1-2 साल रुक जाओ, उसके बाद विल टॉक अबाउट कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। उतना एटलीस्ट यू हैव टू वेट एंड सी कैसे काम चलता है। इसीलिए वो क्विटिंग का थोड़ा कम होने वाला है इसके बाद। प्लस वी even teach them about something like a side business kind of a thing जिसमें they can go for teaching। बहुत सारे psychologists करते हैं ये, they teach people, they are taking tuitions, they are as a guest faculty। मैं खुद एक गेस्ट फैकल्टी हूँ इस टाइम पे, तो I want to question anything, बट या गेस्ट फैकल्टी रह सकते हैं, दे कैन टीच एज अ प्रॉपर फुल टाइम फैकल्टी भी पढ़ाते हैं, बहुत सारे टीचर्स भी बने हुए हैं।
तो वो सब कहीं न कहीं आपको सेकेंडरी इनकम टू मेंटेन टू सस्टेन आपके लिए ज़रूरी हो जाती है इनिशियली। हमें लगता है हम्म कि बहुत ज़्यादा काम है बट येस वी नो हाउ टू बैलेंस वर्क लाइफ, वहाँ पे वो इम्पोर्टेंस आती है आपकी। जो आपने पढ़ा है वो यूज़ करना वहाँ इम्पोर्टेंट आता है आपको कि पता होना चाहिए अपनी लाइफ में कैसे करना है, तो आप किसी को सिखाओगे। प्रैक्टिस व्हाट यू टीच बोलते हैं इसको हमारे यहाँ, टीच भी नहीं टीच प्रैक्टिस व्हाट यू टीचिंग पीपल, वो खुद को ही पता होना चाहिए एग्जैक्टली। तो व्हेन अ पर्सन इज स्टार्टिंग फ्रेश द मास्टर्स के एकदम बाद, आई वुड सजेस्ट इनिशियली इन्वेस्ट इन सुपरविजन। नो अपस्किलिंग इनिशियली कि नहीं मुझे ये थेरेपी वो थेरेपी इनिशियली मत सीखो। इनिशियली कम से कम 6 7 8 महीने लर्न टू सी पीपल, अंडरस्टैंड पीपल, क्लाइंट्स को समझो, मार्केट समझो क्या चल रहा है क्या नहीं। व्हेन यू हैव डिस्कवर्ड कि अच्छा ये चीज मुझे इंटरेस्ट देती है, इस चीज में आई कैन वर्क बेटर, तब गो फॉर अ थेरेपी और तब गो फॉर अ अपस्किलिंग थिंग इन दैट पर्टिकुलर फील्ड। इनिशियली हम्म घुसते ही बच्चे होते हैं हम सीबीटी भी कर ले, हम आरईबीटी भी कर ले, हम ये भी, दैट इज व्हाट कंफ्यूजेस देम। उनको पता ही नहीं फिर थेरेपी रूम में क्या करना है, सीबीटी लगाए हम्म आरईबीटी लगाए नहीं। थेरेपी रूम में आप इनिशियली तो आप एक ह्यूमन बीइंग ही हो ना, बाद में एक साइकोलॉजिस्ट हो गए, फर्स्ट यू हैव टू बी देयर विद देम एज अ ह्यूमन बीइंग, तब साइकोलॉजिस्ट की बात करो। सीबीटी डीबीटी बहुत लेट आता है, वो अभी इनिशियली आएगा भी नहीं, फर्स्ट सेकंड सेशन आपको पता होना चाहिए क्या हो रहा है क्या नहीं, उसके बाद तो आप कुछ करोगे। तो इनिशियली आई वुड से आपको अगर कहीं पे पैसे नहीं दे रहे दैट्स अ गुड थिंग, बट अगर इन्वेस्ट करना ही है, गो फॉर अ सुपरविजन, गो फॉर अ गुड सुपरवाइजर इन दैट केस। सुपरवाइजर हम्म में अच्छा, अगर सुपरवाइजर अच्छा इन्वेस्ट करोगे आपको अपने आप पता चलेगा थेरेपी कैसे फ्लो करती है। आई पर्सनली हैड अ वेरी गुड सुपरवाइजर एंड मैं बहुत प्राउडली बोल सकती हूँ कि आई हैव बीन वेरी गुड एट लाइक द थेरेपी फ्लो पार्ट। मेरी थेरेपी कभी कहीं अटकी नहीं, कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं अटक गई कि इसके आगे मैं क्या करूँ। दैट इज अ क्रेडिट आई गिव टू माई सुपरवाइजर, ही टॉट मी दैट वेल। तो सिखा भी नहीं सकते बट ही इनग्रेन दैट इन मी समहाउ, तो दैट वाज अ गुड थिंग अबाउट हिम। तभी कहते हैं हैव अ गुड सुपरवाइजर एंड यू विल नो थेरेपी, समझ में आ जाएगा। इनिशियली जब आप करते हो स्टार्ट, बच्चों को सुपरवाइजर को नहीं दे रहा, उनको सीबीटी आरबीटी लर्न करना है, हम वही समझा रहे हैं, ह्यूमन को वैल्यू करो एंड सीबीटी आरबीटी का इनकम लेटर ऑन। वो तो हम भी सिखा देंगे, सुपरवाइज करते करते बहुत बार सीख जाते हो, आपको जरूरी नहीं कि उसके अंदर ही सीखना है बैठ के। एक सर्टिफिकेशन से कुछ नहीं हो रहा है, आपको पता होना चाहिए आप कर क्या रहे हो उसके अंदर, हाउ यू यूजिंग हम्म दैट थेरेपी। इनिशियली जब आपने जब ये कहा कि बच्चे वापस आके एंड देन दे आर परफॉर्मिंग वेल, लाइक 1 1.5 साल जॉब करके एंड देन दे आर परफॉर्मिंग वेल, वो कैसे हो रहा है? क्योंकि somehow they've learned the art of having money, saving money and understanding money, finances को बहुत अच्छे समझ चुके होते हैं उस टाइम तक। आप 1 1.5 साल when you are earning you understand finances well, कि घर कितने में चलता है और क्या होता है क्या नहीं, कहाँ देना पड़ता है कहाँ नहीं, where you can save where you can't। एंड उस टाइम पे इफ हम्म यू कीप ऑब्जर्विंग पीपल अराउंड यू, आप ऐसा तो नहीं आप फील्ड कंप्लीटली छोड़ देते हो, आप ऑब्जर्व तो करते ही रहते हो अपने आसपास क्या चल रहा है। अपने नहीं तो फ्रेंड्स को तो एटलीस्ट आप देखते रहते हो व्हाट दे आर डूइंग। वो सब नॉलेज लेकर व्हेन यू अगेन स्टार्टेड, एक नॉलेज एक एक्सपीरियंस के साथ ही आ रहता है, वो थेरेपी का नहीं है बट वो एक एक्सपीरियंस है जो आपको लाइफ में कहीं ना कहीं काम आने वाला है। व्हेन यू ब्रिंग दैट इनटू द थेरेपी रूम, वो आपको हेल्प करता है, हेल्प दैट सस्टेन अगेन। तो आपने कहा इनिशियली 6 महीने छोड़ते बट रीस्टार्ट करते हैं, रीस्टार्ट में वही हेल्प करता है, वही आपका जो लाइफ एक्सपीरियंस आ गया वो हेल्प कर रहा है आपकी वहां पर। फाइनेंशियल समझ के आए हो, आपने क्या पता वहां पे अपने फ्रेंड्स को ऑब्जर्व किया हो, समझ के आए, यू ऑब्जर्व पीपल बेटर। कॉलेज में मेरे पास एक साइकोलॉजी का ग्रुप है जो मेरे ही कोलीग्स हैं, मेरे ही फ्रेंड्स हैं, वो सब सेम सेम ही होंगे ऑलमोस्ट, हम सब एम्पैथेटिक ही मिलेंगे, हम सब बहुत कुछ को प्यारे प्यारे बच्चे ही मिलेंगे वहां पे। वहां पे कुछ नहीं होने वाला, बट व्हेन यू फेस द रियल वर्ल्ड यू सी लोग कैसे हो सकते हैं, कितना कंपटीशन है, हम्म कितने स्केयर्ड कनिंग कैसे लोग हो सकते हैं, यू नेवर नो कैसे मिलते हैं आप। दैट इज हाउ यू लर्न टू डील विद पीपल। वो नॉलेज लेकर व्हेन यू कम इनटू थेरेपी रूम इट हेल्प्स यू। आई ऑब्जर्व पीपल फॉर ऑलमोस्ट व्हाट आई टुक अ ब्रेक ऑफ 7 to 8 years, like I break नहीं but I was working on something else post my graduation। मास्टर्स तो मैंने 18 17 में स्टार्ट करी थी, अप्रोक्सीमेटली 5 to 7 years मैं सिर्फ लोगों को देख रही थी अपने आसपास क्या चल रहा है क्या नहीं। दैट इज व्हेन आई अंडरस्टूड पीपल वेल। आई वुड प्राउडली से दैट कि मैंने वहां लोगों को समझना सीखा एंड दैट इज व्हाट आई ब्रिंग टू थेरेपी रूम नाउ। वो मुझे पता है वो क्या करता है हम्म अंदर आप। दैट इज द थिंग, दैट इज व्हाई यू सक्सीड लेटर ऑन, बिकॉज आप एक्सपीरियंस लाइफ एक्सपीरियंस तो ला रहे हो ना कहीं से। फ्रेश राइट थेरेपिस्ट में नहीं मिलता वो इजीली। राइट राइट कुछ इसमें पीपल स्किल्स की उनके अंडर, और क्योंकि आपकी एक बैकग्राउंड है, आपने एक नॉलेज अटेन की, पीपल स्किल्स के साथ आपने उधर से फिर नॉलेज अटेन की, फिर आपने मर्ज करके यू आर ट्राइंग टू केटर इट डाउन टू द
बिल्कुल, क्लाइंट। सो वो ज्यादा रेलिवेंट भी होगा कि हाँ आपको पता चलेगा कि आजकल इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, आजकल प्रॉब्लम्स क्या है लोगों की, बिकॉज जेनजीज की बहुत अलग प्रॉब्लम्स है एंड बिल्कुल। उससे मिलेनियल्स अबव की अलग एजेस के मिलेगी अलग है। बिल्कुल, हाँ, सबके अलग अलग एज ब्रैकेट्स के अलग अलग प्रॉब्लम्स है। कुछ रिलेशनशिप्स में भी काफी डिफरेंसेस आ चुके हैं। जेनजीज बिल्कुल। के अलग रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स है और अबव एजेस के अलग रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स है, so काफी अलग अलग चीजें आ जेंजी के तो जाती हैं। आप टर्म ही याद कर लो, उतनी बड़ी बात है, रिलेशनशिप के टर्म्स ही याद कर लो। आई हैव बीन लर्निंग देम विद देम कि मैं याद करती रहती हूँ, बट उतना ही याद कर लो बड़ी बात है। उनके साथ रहते आई डोंट नो क्या उनकी मेमोरी पावर है। मुझे भी समझ नहीं आती उनकी आधी vocabulary इस सेंस में। So लेट्स डिस्कस द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, दैट इज अगर कोई नया थेरेपिस्ट है, सो उसके लिए बेसिकली उसे क्या करना चाहिए अपनी प्रैक्टिस लॉन्च करने से पहले, और क्या एडवाइस करोगे कि आगे जर्नी कैसे हो? तो बिफोर स्टार्टिंग मेरा ये होगा कि एक बार लुक अराउंड। इंटर्नशिप तो हम कहते हैं हाँ ठीक है इंटर्नशिप, बट इंटर्न करना है तो इंटर्न विद अ प्रॉपर साइकोलॉजिस्ट, कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं। हम्म। गो फॉर अ स्मॉलर क्लिनिक, वहां पे आपको अच्छा ऑब्जर्वेशन मिलता है फर्स्ट थिंग। वो करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्टार्ट उससे पहले स्टार्ट करने की सोचना ही मत, जब तक आप सुपरविजन और इंटर्नशिप नहीं कर चुके अच्छे से, डोंट इवन थिंक अबाउट स्टार्टिंग। और वहां से आपको रियलिटी चेक मिलता है कि आप क्या है क्या नहीं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, बहुत कुछ आपको वहां से मिल जाता है। सेकेंडली अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंसेस, उसके बिना अगेन प्लीज डोंट स्टार्ट, कर फाइनेंस आपको पता होना चाहिए कितना इन्वेस्ट कर रहे हो। हाँ फ्लेक्सिबिलिटी रखनी जरूरी है, कितना कहाँ जाएगा यू नेवर नो, कभी कभी कॉस्ट आते हैं ऐसे, बट या फाइनेंसेस का पता होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। सोशल मीडिया प्रेजेंस आई डोंट फील इतनी इंपॉर्टेंट है, बट कहीं ना कहीं दिखना इज अ थिंग कि आप कहाँ कैसे दिखते हो। आई नो वेरी बिग वेरी गुड नेम्स इन साइकोलॉजी जो सोशल मीडिया पे है ही नहीं, दे आर नॉट विजिबल एट ऑल, एंड दे आर वेरी वेरी गुड एट देयर प्रोफेशन एंड दे आर अर्निंग प्रिटी वेल। उनको हो गए इतने साल, बट दे आर अर्निंग प्रिटी गुड, लाइक मुझे दिखता है वो क्लियरली, उनके फुटफॉल दिखता है, मिल जाता है, 3 4 घंटे वेट करना पड़ता है उनसे मिलने के लिए, ऐसे भी होते हैं। तो इट इज बेटर टू इंटर्न अंडर देम, मेक देम योर सुपरवाइजर, अगर वो नहीं बन जाते, बट हैव अ सुपरवाइजर बिफोर हैंड। स्टार्टिंग से पहले सुपरवाइजर रखना जरूरी है, फाइनेंस मेंटेन करना जरूरी है, और इंटर्नशिप अंडर अ प्रॉपर साइकोलॉजिस्ट, नॉट अ हॉस्पिटल जहाँ पे साइकेट्रिस्ट बैठे हैं, नहीं, साइकोलॉजिस्ट के अंडर जरूरी है। साइकेट्रिस्ट का नॉलेज होना इज गुड, मेरी भी थी कहीं ना कहीं, मैं 2 साल 2 महीने उनके अंडर बैठ के आई हूँ, ठीक है, बट साइकोलॉजिस्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दैट केस। एंड यस, you have to have a lot of motivation and hope going forward, because initially 6 7 months ये भी हो सकता है कि you don't see even a single client। वो पॉसिबिलिटी है, वो दिमाग में रख के चलना पड़ेगा कि पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर एक भी क्लाइंट ना आए। यू कांट गेट डिसहार्टन इजीली, डिमोटिवेटेड नहीं हो सकते कि नहीं ये तो हमारे लिए नहीं बना। इफ यू थिंक दिस हम्म। फील्ड इज फॉर यू, यू हैव टू गो फॉर इट, यू कांट लूज योर होप्स देयर। एक फेलियर के चक्कर में हम होप्स नहीं लूज कर सकते, हम कुछ नहीं कर सकते इस फील्ड में। और कभी न्यू फील राइट। की नहीं, आपकी स्किल्स यूज नहीं हो रही है, स्किल्स का कोई फायदा नहीं हो रहा, आप बैठे हुए बोर हो रहे हो, गो फॉर एन एनजीओ, लर्न टू डू थिंग्स एट एन एनजीओ। एनजीओ पे यू लर्न वेरी रॉ थिंग्स, बहुत रॉ मिलते हैं आपको, बच्चे हैं सारे क्लाइंट्स बहुत रॉ मिलते हैं वहां। द वर्किंग थिंग जो वहां आप लर्न करोगे वो आप लाइफ लॉन्ग नहीं भूलने वाले कभी। दैट इज अ गुड थिंग इफ यू वांट टू गो फॉर इट। प्राइवेट प्रैक्टिस से पहले ये सब पता होना चाहिए, एंड आई वुड ऑनेस्टली से डोंट इन्वेस्ट इन अ क्लिनिक स्ट्रेट अवे। क्लिनिक स्पेस में स्ट्रेट अवे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, समथिंग आई पर्सनली फील। उससे अच्छा ऑनलाइन प्रेजेंस बढ़ा लो या फिर सुपरवाइजर को उतना दे दो एंड उनसे ज्यादा सीख लो। बट क्लिनिक स्पेस स्ट्रेट अवे, यू नो, यू डोंट हैव क्लाइंट्स एंड यू गो फॉर अ क्लिनिक स्पेस, हाउ आर यू गोइंग टू पे फॉर इट? एक्सपेंसेस यहीं सारे यहाँ वहां हो जाएंगे, डोंट गो फॉर दैट। डूज एंड डोंट्स हुए इसमें यस। कुछ? ठीक है, चीज रहेगा ही इसके अंदर। आपके जो नोट्स होते हैं प्लीज कीप देम इन अ वेरी वेरी गुड शेप। ऐसा नहीं कि नोट्स पे पानी गिर गया, आग लग गया वाला केस ना हो। चाहिए तो उनको डॉक्यूमेंट करो, बट डॉक्यूमेंट इट वेरी प्रॉपरली, बिकॉज यू नेवर नो कौन सा केस आगे चल के किसकी हेल्प करे, आप ही कोई हेल्प कर दे आपके पास। कभी कभी होता है क्लाइंट 4 5 साल के बाद वापस आते हैं मेरे पास, फर्स्ट सिर्फ क्लाइंट बहुत बार अभी वापस आए हैं 1 2, तो मेरे पास नोट्स थे वो संभाले हुए, तो आई कुड हेल्प देम बेटर। अगर मैं उनको बोलती मेरे पास आपके नोट्स नहीं है, प्लीज अपने को डिटेल्स दे दो, वो शायद कहीं ना कहीं चिढ़ जाते हैं मुझसे कि क्या है, हम आए तो थे आपके पास, क्यों नहीं है, आपको याद क्यों नहीं है।
दैट इज द थिंग। मेरे पास 2020 जनवरी से लेकर अभी तक के सब नोट्स एकदम एक जगह पे साफ पड़े एंड डॉक्यूमेंटेड। जरूरी नहीं कंप्यूटर लैपटॉप में ही हो, हैंड रिटन भी हो, कोई दिक्कत नहीं, बट हैव योर नोट्स इन प्लेस। Many companies are also making digital इस चीज को. You can also start keeping digital notes उस चीज को थोड़ा सेव करने के लिए. वो होता है ना, तो ये कभी कभी जब सेशन आप थेरेपी रूम में जब नोट्स लेते हो, आपकी कभी कभी राइटिंग इतनी अजीब हो जाती है कि आप खुद नहीं समझ पाते, तो इनिशियली आपको डालना ही पड़ता है। बट होता है क्या है कि राइट. वहां पे आपने ना वर्बेटिम में नोट किया होता है, एंड व्हेन यू आर कन्वर्टिंग इट टू नोट्स तो वर्बेटिम चेंज हो जाता है, उसका मतलब भी कहीं ना कहीं चेंज हो जाता है, वो हमें नहीं चाहिए। तो इसलिए हम लोग बहुत बार प्रेफर करते हैं कि हैंडमेड ही रखो, बट उसको सेफ रखने के लिए कंप्यूटर में डालना ज्यादा अच्छा है, नहीं डॉक्यूमेंट करना ज्यादा अच्छा है। Understood. So thanks a lot, Akriti. It was a lovely podcast, and I believe सबको पसंद आएगा, स्पेशली अर्ली करियर एंड मिड करियर थेरेपिस्ट को, cause काफी कुछ होप सीखने सो, को ऑल मिला. द बेस्ट टू ऑल ऑफ देम। या काफी कुछ मेरे को भी सीखने को मिला. टारगेट ऑडियंस डिफाइन करना, निशेस, प्राइस स्ट्रक्चर्स. ये काफी ज्यादा हेल्प करेगा उन लोगों को इनिशियली ब्रीफ देने के लिए कि कैसे वो लोग प्रायर प्रैक्टिस अपने डिफाइन करके लॉन्च कर सकते हैं. सो थैंक्स अ लॉट. थैंक यू वेरी मच टू बी हियर. You're welcome.